क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड दोस्त कास्ट में। आज की मेरे गेस्ट का नाम है बागी मुंडा उर्फ मानव शर्मा। His song Divana has now hit I think 7 million views. When I recorded this it was at 5.2 million views. I've loved Bagi Munda for several reasons. One is his insane EP जिसका नाम है बेताज बादशाह. Very instrumental for me at a time when I was trying to build my career. Still am. And second, because he's deeply honest. He's someone who's literally from the streets. No pretense. Just someone who's clawed his way up here and is an honest person. His attempt with this conversation at least is to document the urban Punjabi. जो अर्बन पंजाबी और पेंडूज में क्लैश चलता रहता है. He said he wanted to talk about it. हमने ज़्यादा बात करी नहीं. So I figured I'd tell you here in the intro. In the conversation also is Docs, his producer and long-time collaborator. Docs is a man of few words, as you will see. But overall, मेरे को उन लोगों से बात करके बहुत मजा आया. Before you say that my eyes look stoned, or I'm high, or I must be in some other space land, I will say it was my return to podcasting after a month. और light बहुत तेज थी. So if you wanna take the blame, take it to my dear producers behind the camera, who did not care for my eyes. I'm an old man. And I vehemently deny all these accusations of being high or drunk. This episode with Bagi Munda begins in 3, 2, 1. हेलो वीरे, मेरा नाम विनम्र कसाना है. मैं तुआदे दोम दा बहुता बड़ा फैन आ. चला दे बेकार है भाई. गूगल ट्रांसलेट कुछ नहीं है इसमें. देखना क्या लिखा है. फैम में प्रशंसा लिखा हुआ है. हेलो, मेरा नाम विनम्र कसाना है. उसको भी पंजाबी कर दिया. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ प्रशंसक हाँ. I don't think पंजाबी में प्रशंसक. कभी वो सही भी लिख देता है, पर पढ़ना आना चाहिए ना, फिर वो भी चक्कर है थोड़ा. नहीं, मैंने प्रशंसक जानबूझ के हटाया because I don't think कि पंजाबी में वर्ड है प्रशंसक. Okay. So, welcome. मैं तुआदा तो मैं क्या बोलूँ, मैं तुम्हारा हेटर है यार एक्चुअली. Okay. I hate you. ऐसे ही बोलते हैं. How do I say कि In Punjabi? I really hate you and I wish you would stop playing music. How would I say that? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਜਾਈ ਨਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਤੇ जो you guys do. ਗਾਣਾ ਬਜਾਈ ਨਾ ਛੜਾਕੇ ਬਣੇ ਕਰ ਦੇ. Anyway, very crazy. Very glad that you both are here. Of course, हम तो बात करते रहते हैं मैं और बागी पर. आज भाई हमारे साथ एक फ्रेंच रैपर भी आए हैं, फ्रेंच सेंटाना. तो bro, I don't know how to speak in French, but I want to say that bonjour, je m'appelle Vinamre, et à toi? Docs. नहीं, मेरे को बता रहे थे. बट एक्सोटिक नाम है कि नहीं भाई. दैट डॉग्स. बिल्कुल. अरे बागी मुंडा. Easy to pronounce है. That's the thing. बागी मुंडा ऐसे लगता है कि 1857 में कुछ बहुत बड़े शिकारी का नाम है. कि जब ब्रिटिश के टाइम बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं पंजाब से, ऐसा कोई नाम लगता है. जो काला पानी हुआ. Heavy लग रहा है. Heavy लगता है. क्या डॉग्स का मतलब? I know what the actual meaning of docs is, which is to reveal someone's details on the internet. Yes. That's what docs is. Private information. वही था, स्कूल में था मेरा एक फ्रेंड who was into hacking और ये सब. तो मैं कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे को भी बता. तो मैंने सर्च किया कि क्या होता है ऐसे. तो वहाँ से एक टर्म मिला डॉक्स. डॉक्सिंग था तो आई कट इट शॉर्ट. डॉक्स रख लिया. Sounded cool, that's it. तो मैं कहता सही है भाई. Okay, like a good music journalist, which I'm not. I will say, मैंने आप लोगों का वो गाना देखा और सुना दीवाना. ठीक है, of course. क्या बैंगर बनाया. Congrats on the 5.2 billion views. जब तक ये पॉडकास्ट आएगा और बढ़ जाएंगे. Thank you so much भाई. Thank you so much. मैंने बागी को फोन करा. मैंने कहा भाई आपने, all due respect to the model, आपने एक why did you choose a slightly uncharacteristic girl for the music video? I would assume it's a music video in a Punjabi song, right? And I would say that you're not conventionally Punjabi in the way that I would say you're alternate Punjabi, you're hard hitting. But that video has blown up. It's got soft visuals. It's got your friend Jassa, and that woman is भाग रही है बढ़िया. इतने views हैं. तो I was just wondering what was that choice? मतलब जो आपको फोन पे बताया था वही बताऊंगा, पर थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ कि दर्शकों को इंटरेस्टिंग लगे. हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे. बात ऐसी है कि अभी एक गाना और चला है सुपरस्टार हमारे जसकरण भाई का, वो भी चार्ट्स पे आया बड़ा, है ना.
तो वो गाने की बीट और ये गाने की बीट एक ही सेशन में सुनाई थी डॉग्स ने, जहाँ तक मुझे याद है। ये दोनों बीट्स चली थी और सुपरस्टार की बीट उनके पास गई, वो भी गाना वायरल नंबर 1-2 पे, मतलब बड़ा ऑफ द रूफ गया गाना। मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, वो ये दीवाना की बीट भी प्ले की थी इन्होंने उस दिन। और वो क्योंकि हम संजू सल्लू रिटर्न बना रहे थे, तो हमें लेवल वालों ने बोला था कि भाई एक मार्मिक सा गाना भी तो दो, ये तो आप बड़े खतरनाक मार दूंगा काट दूंगा सब यही चल रहा है, तो थोड़ा कमर्शियल भी होना चाहिए। तो हमने वो फीडबैक लिया और वो बीट जब मैंने सुनी तो मैंने जैसे को बोला था यार कि हमें इसमें जो है स्कूल कॉलेज वाली लव स्टोरी दिखानी है। जैसे मतलब जैसे गाने हम लोग सुनते हैं 9X स्टेशन पे आते थे, पुराने टीवी पे आते थे, तो फिर उसके बाद हमने इसको लिखना स्टार्ट किया, सब चीज़ें करी, मतलब जैसे गाने की प्रोसेस होती है, पूरा गाना हमने बना लिया। फिर बारी जब आई वीडियो की, तो वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा, क्योंकि लास्ट वीडियोस मैंने जितनी भी करी LTD की करी, वहाँ हमने कैनेडियन मॉडल मंगाई थी उसके अंदर, जिसका 5-10 मिनट का एक शॉट रखा था, इतने पैसे दिए उसको तो है ना, 4 करोड़ की गाड़ी खड़ी करी पीछे। तो मेरे को लगा यार कि ये अच्छा है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। मैंने वो वीडियो ये दिखाने के लिए बनाई थी कि भाई मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कैनेडियन मॉडल नचाना और गाड़ी 4 करोड़ की खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब आ जाता है, सब वीडियो में आ जाता है। ये देख के अच्छा लग रहा है। देखो इस बार मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मेरी सारी टीम के साथ, डॉग्स के साथ, जैसे के साथ, वो क्लियर था कि इस बार हम वो दिखाएंगे जो होता है, जो हमने फील करा है। लैम्बोर्गिनी और कैनेडियन मॉडल हमने फील नहीं करी। हमने जो प्यार की परिभाषा जो हमारे लिए स्टार्टिंग से रही है वो है कि किसी के लिए दीवाने हो जाना, और वो आप फिर उसके शिद्दत से होते हो, फिर जब उस दीवानेपन से निकलते हो तब समझ में आपको आता है कि आप क्या चुतियापा कर रहे थे। आप सिंप नहीं करते, क्रश नहीं करते। हाँ, आप क्रश करते हो, सिंप नहीं करते। हाँ, या तो फिर बाद में जब आप बड़े हो जाते तब आपको फील होता है कि क्या ही था ये, हम पागल थे, दीवाने थे, कुछ भी कर रहे थे बहनचोद। तो वो वाला जो है ना कि उस हिसाब से था। तो इसलिए आप देखोगे कि जैसा मैं हूँ उस हिसाब से मैंने लड़की ली, नॉर्मल लड़की दिखती है, नॉर्मल मैं दिखता हूँ, नॉर्मल जस्सा दिखता है। बाहर लड़के जो खड़े हैं वो भी वैसे ही हैं, नॉर्मल है, क्योंकि सच में लोग नॉर्मल ही हैं। जैसे हाँ, वी आर नॉट सुपर मॉडल्स ना, हमें से कोई भी है। वही बात है, जैसे और मैं भी यार, मैं भी गीतकार हूँ, मैं भी कोई सुपर मॉडल तो हूँ नहीं। यू लुकिंग गुड, आई ऑलवेज लुक गुड, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मैं मॉडल नहीं हूँ और ना मुझे लिखने का शौक है, सिंपल सी बात है। और रैपरों को होगा शौक, मॉडलिंग करने का मुझे कोई शौक नहीं है। बस इस गाने में मेरा बहुत क्लियर था कि भाई हमें वो दिखाना है जो रियल है, और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने वैसा परसीव भी किया, उस चीज़ को बड़ा सपोर्ट किया। इसमें इतना कुछ था नहीं वैसे। कौन सा पंजाबी वाला है भाई जो पंजाबी नॉवल पढ़ता है इतनी बड़ी? आपने उसमें किताब दिखा रखी है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम जितने भी हम में से जो फेंकते हैं ना कि हिंदी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, हिंदी बड़े हमारे, दे हैव नो अदर नेम, दे ऑलवेज से मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स, दैट डूड रोड नॉवेल्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एरा। जब भी उनको दिखाना होता है कि हिंदी साहित्य कहाँ तक पहुंचा है, मुंशी प्रेमचंद का वो करते हैं। वो कौन सा व्यक्ति है जो उसके अंदर उसके वीडियो में वो बना हुआ है, क्या है वो? शिव कुमार बटालवी जी हैं। अच्छा, पंजाबी वर्जन है उसकी? नहीं, वो आप किताब की बात कर रहे हो ना, जो वीडियो में दिखाई है। वो राइटर जो फोटो लगी है जिनकी किताब के ऊपर, वो राइटर शिव कुमार बटालवी हैं। और उनकी आई थिंक समूची कविताएं हैं ना, काव्य है वो, मतलब सब जो कविताएं हैं उनकी उसमें बुक में है। अच्छा। और बड़े ही दिलफेंक किस्म के आशिक थे वो भी, शराब का बड़ा सेवन करते थे। तो काफ़ी इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर रही है स्टार्टिंग से उनकी, और हमने बहुत पढ़ा भी है उन्हें बहुत। मेरा असल में जो फैंस होंगे मेरे पुराने वो जानते हैं कि एक गाना था अलोन, वो गाने की स्टार्टिंग में भी यूज़ किया था शिव कुमार बटालवी का इंटरव्यू, कि जो भी बंदा आर्टिस्ट होता है जो ज़्यादा चिंतन करता है वो स्लो सुसाइड करता है जिंदगी भर, धीरे धीरे। मैंने रील देखी हुई है। हाँ जी, धीरे धीरे मरता है वो। तो उसी से पूरा इंस्पायर होके अलोन लिखा था कि पूरे गाने में नाच रहा हूँ मैं, लिरिक्स ऐसे हैं कि मर गया हूँ, अकेला हूँ, ये ड्रग्स पे हूँ, पर नाच रहा है पूरे गाने में। तो वैसा था क्या, वो सेलिब्रेटिंग माई पेन इन दैट सॉन्ग। तो स्टार्टिंग से ही बहुत इन्फ्लुएंस रहा है उनका मेरे ऊपर,
इसलिए फिर इस बार मैंने यूज़ किया और मैं 100% श्योर था कि एल्बम ब्लो होने वाली है। ये तो मेरा पक्का था कि गाने हिट होने वाले हैं, एल्बम चलने वाली है। और मैं तो खुद को अभी भी नहीं हम लोगों को समझता कि हम लोग मेन स्ट्रीम हो गया, पर लोग कहते हैं कि हम लोग मेन स्ट्रीम हो गया। मैं तो नहीं मानता, मेरे को लगता है मैं तो पहले भी मेन स्ट्रीम था ही। उन लोगों के बीच में जो मेरे को प्यार करते हैं उनके लिए तो मैं हमेशा से नंबर 1 था। आई वॉज द पर्सन हु वॉज मेन स्ट्रीम फॉर देम पहले से ही। आई डोंट हैव टू बी वैसे वाला मेन स्ट्रीम, बट जो कहते हैं कि नंबर्स होते हैं उसकी वजह से मैं प्रिटी श्योर था कि हिट जाएगा। तो मैंने अपने दिल से वो रेफरेंस रखा था। किताब जो है, खत, वो इतने लड़के उसके लिए खत लिख के लेके आए हैं, पर जस्सा जो खत उसके अंदर रखता है किताब के, वो किताब कैसे न कैसे उस लड़की के पास पहुंचती है। शेर जो है तजम्मल कलीम साहब का एंड में, वो लड़की पढ़ती है, गाने में पीछे से चलता है और मुस्कुराती है। दैट्स द एंड, सिंपल एज दैट। क्या है वो बादशाह? हाँ, कमाल करते हो बादशाह, वो वाला शेर है। व्हाट्स द मोस्ट absurd response? आप मेरे को ऑफ कैमरा बता रहे थे कि एक कुछ इनकम टैक्स के बंदे आपके पास आए थे कि भाई अरे आपका गाना बड़ा अच्छा लगा। absurd कौन इंसान लगा? जब आपकी कुछ चीज हिट होती है आपको हर जगह से प्यार मिलता है, तो आप बोलते हो ये भी लोग देख रहे हैं। अभी मैं ये स्टार सेक्टर में जिम खाना है, वहाँ हम लोग शराब का सेवन वहीं करते हैं। जिम खाना में अलाउड है आपके यहाँ? जिम खाना बार का नाम है। हाँ जी। अच्छा, नहीं क्योंकि हम जिम नहीं है वो। हम नहीं, मैं समझ गया, हमारे यहाँ भी जिम खाना है। हाँ, वहाँ मेंबर जो होते हैं अंदर बैठ के, नहीं मेंबर वाला नहीं है, ऐसा ओपन बार है बस। अच्छा, जिम मतलब वो जैसे दोनों शहर सेक्टर वाले हैं हमारे ना, तो वहाँ जिम खाना होता है सेक्टरों में, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, हमारा जो है सेक्टर 17 में, एक तो क्योंकि सेक्टर 17 में मेरी हिस्ट्री है, ये सबको पता ही है। स्टार्टिंग से ही साइफर्स वगैरह करता आया हूँ और बहुत घूमा फिरा हूँ। हम सब ने इतना वहाँ पे सब स्टार्ट करी चीज़ें। तो एक तो वो था, दूसरा सस्ती थी वहाँ पे दारू, तो अब थोड़ी उन्होंने बढ़ा दी है। मेरे को लगता है जितना मैंने प्रमोट किया है, लोग इतने जाते हैं वहाँ पे, अब सारा ने रेट बढ़ा दिया है मेरे लिए भी। अब मेरे को भी कुछ देखना पड़ेगा नया। खैर, वहाँ हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम ड्रिंक कर रहे थे। तो 2 लोग आए, एक सरदार जी थे और एक मोना बंदा था। 2 बंदे 40-45 की एज होगी, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, बोला हम बैठ सकते हैं। मैंने कहा जी बैठो। बैठ गए। उन्होंने कहा कि आप वही हो जिनका गाना रील्स पे चल रहा है? मैं कहा हाँ जी वही हूँ, क्योंकि मेरा ही चल रहा है अभी। मैं कहा हाँ जी मैं ही हूँ। बोले कि हम लोग, क्योंकि मैं भी उस टाइम थोड़ा सा अंडर द इन्फ्लुएंस था, तो पूरा मुझे याद नहीं, जितना उन्होंने बोला कि हम भाई इनकम टैक्स उससे हैं, डिपार्टमेंट से हैं, ये हम जॉब करते हैं। और तो मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई देखो, अगर आपको लगता है कि पता नहीं हमने कितना पैसा कमा लिया इससे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे पास अभी कुछ आया नहीं है इससे। तो कहते नहीं, हमने वो गाना सुना और हमें बड़ा अच्छा लगा कि फ़ोटो खींच सकते हैं आपके साथ। मैं कहा जी ठीक है, खींच लेते हैं। फिर लेके गया बाहर के, उनके साथ फ़ोटो खींची। एक वो मेरे लिए थोड़ा अभी लास्ट के दिन में इतना कोई हैरानी वाला तो नहीं था, बट बात ये थी कि जैसे हम लोग अभी बात करें थोड़ी देर पहले कुछ यूट्यूब कमेंट्स के बारे में ऑफ द कैमरा, कि भाई दीवाना गाना अच्छा लगा इज़ अ डिफरेंट थिंग, मेरा फ़ैन होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फैंस हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा शोज़ पे आते हैं, वो एक गाने को प्यार करना अलग चीज़ होती है। उतना ही अप्रिसिएशन है गाने के लिए भी, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ का भी। तो वो गाने वाले थे, तो गाना अच्छा लगा। मैं ये चीज़ इमेजिन कर सकता हूँ कि जब आप एक चीज़ निकालते दुनिया में जी, और आप सोचते हो ये फटेगा, ये तो ज़रूर फटेगा, ये तो बिल्कुल फटेगा, ये जो मैंने क्या बना दिया, और आप हार्ड जा रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो। It's the most uncanny thing that blows up. You said it was going to blow up, but for me, what is surprising is that मैंने कभी यूनिवर्सिटी कल्चर नहीं देखा इंडिया में क्या होता है। ऐसा ही होता है आज भी बंदे मतलब लड़की की वजह ऐसे ही भाग रहे होते हैं। बिल्कुल। और टाइम्स चेंज। I don't know पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसा है। नहीं, मैं तो खुद आपके सामने कभी कॉलेज का दरवाजा मैंने एज अ स्टूडेंट तो पार कभी किया नहीं, है ना। तो हमने भी कभी ऐसा खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, पर जितना देखा है, हमारे यार दोस्त अब बने हैं, जाते हैं, तो अभी भी दीवानापन तो उतना ही है।
वो जो फीलिंग्स है वो चेंज नहीं होती, ये मीडियम चेंज हो गए अब अप्रोच करने के, पर अंदर जो आग है वो तो उतनी है यूथ के अभी भी। तो लगे हुए हैं पागल है लड़कियों के पीछे। यार दीवाना ऐसे तो चला नहीं है, देखो है कुछ तो है। 5.2 मिलियन में से मेरे ख्याल Yeah. में 75% लड़कों के व्यूज होंगे, क्योंकि वो चाहते हाँ हैं। बेशक उस लड़कियों के भी है। अभी एक लुधियाने में शो किया था, वहाँ बहुत फीमेल ऑडियंस आई थी। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे कि what were your ways of sort of pursuing girls as you didn't go to college, Yeah. right? तो आप क्या मतलब as आप बताओ rising भाई। musicians, आप बताओ भाई, आपके लुक्स के हिसाब से आपके हाँ लिए भाई, क्वेश्चन अच्छा है। friend Santana हम तो भाई, विलन लोग हैं भाई, हीरो लोग से पूछो हाँ भाई। लड़की कैसे खैर मैं पटाते हैं, विलन हमें वाली क्या। भी बात करूंगा। मैं कुछ रील्स स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, एक लाइक मेरे को दिखता है उन रीलों पे, पुरानी बॉलीवुड की रील होती है हमेशा मैंने फोन में सेव कर रखा है, बागी मुंडा मैंने सेव कर रखा है, उसमें एक फोल्डर में मैंने कहा याद आ गया मेरे को, अमरीश पुरी कोई 2 पैसे का बिल्कुल देहाती डायलॉग बोल रहा है, हाँ। लाइक बाय बागी मुंडा। आई लव इट ब्रो। हाँ भाई, आप बताओ भाई, आप डॉग्स भाई, आप you are so लड़की blessed। कैसे पटाएं 10 तरीके बता दे, बात बता दो खत्म भाई। कर यार। लंबी मैं कर, भी- शॉर्ट कर, कट कर, लंबी मत कर, डन कर। लड़की कैसे पढ़ाए रीजनल एडिशन विद म्यूजिक फेम। डॉग्स। भाई देखो सीरियसली बताऊं तो आई ऑल्सो डिडंट डू इट। बस स्टार्टिंग में मेरे को भी डर लगता था यार, कुछ ऐसा अगर बोल दिया तो यू नो शी विल लाइक निकल यहाँ से, क्या है ये, यू नो। हाँ, बट देखो लाइक फॉर एन आर्टिस्ट थोड़ा वो हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर सामने से कोई आ रहा है, देन इज लाइक यू नो ठीक है ओके, बिकॉज जब आप थोड़े फेमस हो रहे हो, पीपल स्टार्टिंग टू नो यू, तो डीएम्स आते हैं, मेरे को आते हैं, हम यू नो ओह saying इसको it डीएम on आते the हैं भाई। camera, तो आई कैन नॉट लाइक आई कैन नॉट टेक्स्ट देम बैक ऑब्वियसली, मतलब थोड़ा वो चीप तरीके से लगता है, तो बट यार मैंने ऐसे कुछ करा नहीं है, सो आई कैन नॉट। आप मैं छोड़ो ना, आगे बताओ। आप पहले आपकी क्रश थी, आपको उससे प्यार था, पहली गर्लफ्रेंड कैसी बताई ये बताओ मेरे को। आप इतने जो आदमी यार गाने शर्मा लिखते हैं, जाएंगे इतने- यार कसाना भाई यार। अभी आदमी बताओ, एक बात बताओ, आदमी गाने म्यूजिक अल्टीमेटली क्यों बनाता है? उसको को मतलब भगवान से तो नहीं मिलना है, अल्टीमेटली वो बताता है दैट ही हैज बेटर एक्सेस टू better resources, better women, right, better money. नहीं, but I can say it confidently about me, Jaskaran and Dogs. We don't make music to get girls. We don't have to now. ये तो स्टार्टिंग में भी नहीं ऐसा अभी सोचा नहीं, था, वी मतलब- डिडंट थॉट कि नहीं, म्यूजिक इसलिए बना in रहे starting it was one of the things. हाँ, one of It the was, things, yeah, it was. but वो मुझे time याद है not यार, now. मैं गिब्सन का नकली गिटार पकड़ के मैंने गाने हाँ। बनाए, लड़कियां बोलती नहीं, हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल People do था, that. बिल्कुल था भाई। इवन मैं और डॉग्स, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं 17 साल का था उस टाइम से, है ना। ये भी हम 17 साल दी सी सब दोनों दो अपन जने। 18 हाँ, फिर बिल्कुल है ना, टीनेजर्स थे हम लोग, और हमारी बातें यही होती थी भाई, यू नो। हम लोग भी बड़ा ये चीज का, तब तो हमारा होता था यार, लड़कियां हमारे गाने सुने यार, ऐसा हो कि लड़कियां पागल हो जाएं, ये हो जाए। देन यू नो धीरे धीरे अपने को समझ आया कि यार जो हमारा जो प्यार है ना म्यूजिक से, वो तो गहरा है, और प्यार है हमें म्यूजिक से, हमें अच्छा लगता है, और ये हमारे लिए एक फ्रीडम है, यू नो। नाउ इट्स अ लाइफस्टाइल, ठीक है। और ये जो चीज़ है कि भाई जो और आर्टिस्ट भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, या जिनको बहुत साल हो गए, उनको अभी भी ये भ्रम है कि भाई म्यूजिक करेंगे, वो लड़कियां आएंगी और ये करेंगी, वो करेंगी। आई थिंक वुमेन, स्मार्ट वुमेन जो होती हैं आपकी उम्र के हिसाब से, अगर आप जो हैं औरतें जिनमें थोड़ा दिमाग है, वो आपके म्यूजिक से निपटने वाली, वो आपकी पर्सनालिटी से, यू नो, दे गोना फक विद यू। Yeah, what हाँ, are you stand for? What are you fighting for? Yeah, How do you behave in public? हाँ, मतलब ये All है your कि नहीं है, life. थोड़ा बहुत दिमाग तुम में तो हाँ, है ना, पर्सनैलिटी क्या है, और जो तुम कहते हो कि आप वो कर सकते हो या नहीं, सिंपल एज दैट, उस पे है। अब म्यूजिक का क्या है, म्यूजिक में तो कुछ भी बोल दो। अगर म्यूजिक से ही तुम्हें लगता है कि वुमेन जो है पागल हो जाएगी, तो भाई म्यूजिक में तो कुछ भी बोल सकते हैं। कितने रैपर क्लेम करते हैं सिटी, किसके पास रजिस्ट्री है? कितने रैपर बोले ये शहर मेरा, वो शहर मेरा, किसका है भाई शहर? तो बोलने से कुछ नहीं होता, ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। प्यार और ये सब चीज़ें रियल लाइफ में बहुत अलग होती हैं। म्यूजिक एक एंटरटेनमेंट है, हाँ, आपका मिशन जुड़ा हो सकता है उसके साथ, बट दिस शुडंट बी द मिशन। ये क्या है कि भाई लड़कियां ऐसे पटानी है, वो बिना इसके भी हो सकता है। ये हमें धीरे धीरे समझ आया,
ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही इतने ये समझती है हाँ, मैं, पहले तो कह रहे हैं, पहले "Where's दिन the हम भी bitches? वही थे, Where's the bitches?" वही था bitches obviously bro you live in Noida talk about bitches, हाँ सही है भाई। नहीं मैं तो नहीं आपको नहीं, मैं वैसे कर रहा जनरली, ये बंदा कहा bitches यार ब्रो, bitches यार, bitches सही है। No, this is where I disagree. First, I would say, hey, whatever. फिर मैंने एकदम पे रियलाइज करा कि जो पॉप कल्चर में बातें बोल रही होती है ना, उसमें इंसान अपने आप को रोकता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, I won't say it. But then, where's the bitches? Well, they're at your हाँ concerts नहीं now. इन दैट वे, जैसे यार दोस्त बैठे हैं, कुछ बात होती है, पता नहीं क्या है कि ये बातें होती हैं, क्या क्या यूज होता है, एन वर्ड यूज होता है ऐसे खुलेआम, इसमें क्या है, लोग करते हैं इंडिया में ऐसे ठीक है, हमारे कॉन्टेक्स्ट थोड़ी है हाँ वहाँ वही पे। कह रहा हूँ कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें यूज होती, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई ये नहीं वर्ड बोलना, वो नहीं बोलना, पर मैं एक मजाकिया वे में बोल रहा हूँ कि इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, आपकी शख्सियत जो है उससे फर्क पड़ता है उस मामले में, औरतों के मामले में जो है, जहां तक मुझे जो समझ प्राप्त हुई है अभी तक, वो तो भाई यही है म्यूजिक। और हमारा तो वैसे ही मेल सेंट्रिक, मतलब मेरा तो मेल सेंट्रिक म्यूजिक है, ही इज अ प्रोड्यूसर, ही प्रोड्यूसेस फॉर एवरीबॉडी दैट ही लाइक्स, क्या इसमें और Yeah, I think that काम है हमारा। at what point does work become expression? What point is it commercial? Is a real question, because you start off by saying कि मुझे कुछ दुनिया में कहना है, मेरे अंदर एक छोटी मोटी आग है, बड़ी आग है, छोटी आग है, या एक चूल्हे एक डिससेटिस्फैक्शन है दुनिया की स्टेट के साथ। ये नहीं कि मेरे को भैंचो इकोनॉमिक्स बदलनी है, पॉलिटिक्स बदलनी है, या गाजा पैलेस्टीन करना है जो लोग करते रहते हैं आजकल की, वहां देखो, अरे बैंगलोर अपना घर देख, मतलब यू नो रियली। बट वंस द प्रॉब्लम इज दैट एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज इंटरफेसिंग एंड फीडबैकिंग विद द पब्लिक, राइट? मैं एक चीज सोचता हूँ, दुनिया मुझे ये बोलती है, मैं फीडबैक लेता हूँ, आई स्टार्ट चेंजिंग, and then once in a while you realize ki what have I become, right? And is that I'm asking now, is that now the song is blown up, the pressure is on you guys कि हम अब hit पे hit deliver करें। मेरे पे तो नहीं है भाई, in the sense कि now people, okay, now the average random person who didn't care knows you, like for example जब PS भाई का गैंगनम स्टाइल आया था, आपको याद है? आपको याद है गैंगनम स्टाइल के मोमेंट में जो डांस करते थे, उसने और बहुत गाने निकाले, but it was a trend. Yeah. So I'm very afraid for some of my artist friends is that when a trend happens, it can destabilize your very core of what you stand for, because everything you stand for, आपने इतना सारा बनाया है body of work, एकदम पे एक चीज आती है, इतनी बड़ी हिट हो जाती है, आपको लगता है कि भाई should we do more of this? I think we found a niche. What do you do then? Are more of these coming? Like we didn't think कि एक दिन ये चीज़ blow हो जाएगी, you know, we were not thinking like that. आप just काम कर रहे थे, you know, just making music every day, music videos ये सब, so वो किस्मत चली गया सी, वो होनी सी चीज़, so it happened, but we didn't think कि ये होगी है तो we have to deliver it the way. अब दो चीजें हैं, देखो पहले तो हर गाना जब बनाते थे मैं तो हमेशा बोलता था भाई हिट है, होता नहीं था, लेकिन इस बार मैंने बोला हो गया मेरा तो, लेकिन बिलीव पहले दिन से ही था हर गाने पे रहेगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा सोसाइटी अवेयर हूँ कि भाई मुझे पता है लोग क्या सुनना चाहते हैं और ये वाला सुन के तो लोग, इतना नहीं है। अपना दिमाग में लगाता हूँ, मैंने दीवाना में लगाया, इस बार चल गया, अगले में भी लगाऊंगा, वो मेरी समझ के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर चीज़ नहीं भी चलती है, अगला गाना मान लो नहीं चलता, खुदा न खास्ता अगला गाना हमारा वर्क नहीं करता या कोई चीज़ वर्क नहीं करती, ठीक है ना, दैट वॉन्ट बी न्यू फॉर मी। I was making music 3 साल दिहाड़ियाँ करके and I was making no money out of it. Now I look back, I think I was crazy. अभी मैं इतनी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, चीज़ें हैं, पर at the end मैं वही बंदा हूँ। When shit will hit the fan, I know how to handle it. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, I will still come out of it. इतना मेरे को भरोसा है क्योंकि मैं देख चुका हूँ वो चीज़। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पे प्रेशर नहीं आने वाला, वो तो मेरे को, मैं श्योर हूँ मेरे पे ये चीज का प्रेशर नहीं आ सकता कि चीज चलेगी नहीं तो क्या, आई हैव टू कम अप विद अ न्यू थिंग, ठीक है, विद अ न्यू सॉन्ग। वल्नरेबल मोमेंट बड़ी अच्छी लगी है, आपने अपनी मम्मी को एक कान की बाली गिफ्ट खरीदी है, आई थिंक दैट वाज वेरी नाइस। या इट्स अभी मेरी मम्मी पूरा फुल इंटरनेट यूज करती है, आईफोन यूज करती है अपना बढ़िया, और मेरे लिए वो बड़ा एक अच्छी चीज है, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, बिकॉज हम लोग
चलो ये तो कहने वाली बातें, अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, कहते रहेंगे ये किया वो किया, ये नहीं था वो नहीं था, मतलब बट हमारे घर पे वो जो बटन वाला फोन होता है उस पे रेडियो सुना है, और मैं 2017 18 19 की बात कर रहा हूँ। आपने तब रेडियो सुना उस पे? मेरी माँ सुनती थी रेडियो उस फोन हाँ। पे, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए। टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, और उस पे यू नो शी यूज्ड टू लिसन टू दैट। अभी सब चीजें हैं, टीवी है, वाईफाई है, आईफोन है, चीजें देख रहे हैं, तो म्यूजिक प्रोवाइड्स मैन। हाँ मतलब कैसे अब इसको बयान कैसे करें शब्दों में, ये तो फीलिंग ही अलग है, ये मेरे लिए अच्छी चीज है, बस ये है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक देन आप क्या हेटर की, क्या कमेंट की, क्या दुनिया की सोचोगे, क्योंकि क्या जो फर्क आपको नहीं पड़ता यार, फर्क who you love in the most in the world is happy. अब क्या कोई इंसान मेरे को देख के ये उसको महसूस नहीं होता कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ इन माई सेल्फ? yeah. बस मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं अंदर से पूर्ण हूँ इस चीज के लिए, मैं खुश हूँ। काम करना पसंद है, वो मैं करता रहूंगा। मैंने स्टार्ट किया, अभी काम कर रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा और काम करेंगे, और सिर्फ म्यूजिक पे रुकेंगे नहीं। सिर्फ म्यूजिक करने हम लोग आए नहीं है, हम लोग बहुत और चीजें करने आए हैं, जब वक्त होगा वो भी करेंगे। You want to get into something else? What? Some other territory? हाँ, I'll get into that धीरे धीरे। मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ आपको, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी क्या है, इसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चलेगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ, मैं उठता हूँ, वी आर अ कोवर्किंग स्पेस बट नाउ वी आर ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री, सो वी लेट दैट गो। मेरा वहाँ पे एक स्टूडियो बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पे ये स्टूडियो है। मेरे मैनेजर का ऑफिस पास में ही है, मेरे सारे दोस्त आसपास रहते हैं, हम सारे प्रॉक्सिमिटी के, हम सब के सब प्रॉक्सिमिटी के रिजल्ट्स हैं। अगर हम सब एक दूसरे के घर के आसपास ना रहते, शायद ना मैं आपके सामने बैठा होता, ना आप मेरे सामने बैठे होते, ना आप दोनों साथ में बैठे होते। राइट। किसके माँ बाप ने क्या डिसीजन लिया कि हम यहाँ कर लेंगे, तुम यहाँ कर लोगे, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा ये बगल वाला ये करता है, चल भाई ये दोस्ती कर लेते, तू पीता भी है भाई, मैं पीता हूँ। करते 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 साल बीत जाते हैं, बोलते भाई जो 10 साल हो गए दोस्ती के। मैं बताया था मैं रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं भी उस दोस्त से 2017 में मिला था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 साल हो गए। अमन मेरा मैनेजर है, उससे मैं सेम इकोनॉमिक सिचुएशन में जाता था। घर वालों ने निर्णय लिया हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, हमने इंडस्ट्रियाँ बना दी बैठे बैठे सबकी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा था। मैं यहाँ पे आता हूँ, चलो भाई हमने यहाँ पॉडकास्ट अपने शेड्यूल कर रखे हैं, हम आते हैं यहाँ पे अपनी जगह पे, कॉफ़ी बना दो सनी भैया, पॉडकास्ट करना है। अच्छा गेस्ट आया, उससे पहले स्ट्रेच, यू नो, गेट इन द जोन, हाई एनर्जी हो जाओ थोड़े से, ओ भाई क्या हाल है, बैठो बैठो। आपके साथ एक्सेप्शन है, हमने कुछ 2-3 और चीज़ें करी एक्स्ट्रा जो हम अक्सर लोगों के साथ नहीं करते। बैठते हैं, बात करते हैं, शाम रात तक हम अपने मैनेजर के यहाँ जाते हैं, तो वही बोलता है भाई क्या डील है, ये डील है, वो डील है। हम अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं, ठीक है, अपने दोस्त जैसी टीम के साथ काम करते हैं, एंड काम भी उन लोगों से करते हैं जिनको हमारा मन करता है काम करने का। सो लाइफ हियर इज़ वेरी कंफर्टेबल। आई डोंट नो, मेरे कुछ प्रोड्यूसर दोस्त हैं, मेरे कुछ रैपर दोस्त हैं, वो लोग सोते नहीं है टाइम से, मतलब कुछ अजीब ही अपना मतलब बीट बनाने बैठ गए, आइडिया आ गया। आप लोगों की दिनचर्या कैसी होती है भाई? बताओ जरा दिनचर्या यार आप। भाई बताओ यार, पूछ रहा है, जरा बताओ दिनचर्या। बताओ ना आप, मैं भी बताता हूँ। कोई नहीं, मेरा ऐसे ही है, मतलब बताओ हम लोगों का ऐसे ही मजाक चलता रहता है यार। मैं इसको छेड़ता रहता हूँ ऐसे ही, फिर तो कहते नाउ यू से इट मैन। तो ऐसी मस्ती में चलती रहती है भाई। तो पहले मैं थोड़ा ऐसा था कि मैं रात को थोड़ा लेट जाके, यू नो, आई यूज्ड टू मेक बीट्स और ऑल सब, बट अभी बिकॉज जैसे शोज हो गए या कुछ भी, हैव टू ट्रैवल, एकदम अचानक से उठ के जाना होता है कहीं पे, तो वो स्लीप साइकिल थोड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रुको, फिर वहाँ पे नींद नहीं आती, वो सब चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं थोड़ा क्या कहते हैं चेंज किया, थोड़ा सुबह उठ के थोड़ा, यू नो, वर्कआउट किया, और फिर उसके बाद I come back, have some diet, so and then you make the beats. Yes. So you worked out, you eat a good meal, probably Yes. have a coffee, and then you make the beats. Yes. Not under the influence of substances always. हाँ, I used to do that in the night. मेरे घर पे ही करता था, मतलब हाँ नहीं, बट अब आप एक तरह से एंडोर्फिन्स और डोपामिन के उसके अंदर आप बीट बना रहे हो। नहीं, लेकिन एक चीज है, आई थिंक कि नशे में हम कभी भी काम नहीं करते। नहीं वो चीज़ नहीं है, नशे में कभी भी नहीं करते। अच्छा, कभी नहीं करते। Whatever is coming is from हाँ मतलब नहीं, दारू पी के या ये करके वो वर्जन जो होता है, जैसे अगर मैंने ड्रिंक कर रखी है एंड आई रिकॉर्ड अ सॉन्ग, वो एक बहुत डिफरेंट वर्जन है
वो वाला नहीं रिकॉर्डेड में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल आउटटेक एक नहीं मतलब कि इन जो भी है, जब हम लोग नशे में हैं, मैं अपनी बात कर देता हूँ और मेरे को नहीं पता कोई बताना चाहता है कि नहीं, जब मैं नशे में होता हूँ मेरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, और मैं ना स्टेज पे चढ़ता हूँ अब दारू पी के या कुछ करके, नहीं अब नहीं, अब What's नहीं, changed? या because Fitness now. नहीं, because that I can maintain every time in every song. सोबर स्टेट में मेंटेन कर सकता हूँ, दारू की नहीं कर सकता है। समटाइम्स इट्स 2 पैक, कभी 4, कभी 5, इट्स मतलब और उसके I don't know how to, consequences भी बहुत सारे हैं ना उसके बाद भी। हाँ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट मेरे लिए ये है कि मेरे को कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है वो चीज़ हर बार। मेरे को थोड़ा मेरे को मेंटेन फास्ट पेस हो गया क्या? नहीं एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, वोकल्स का भी, एनर्जी का भी, सब चीज़ों का भी। तो मैं उस पागलपन में नहीं जाता। स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत दारू पी के स्टेजों पे चढ़ा हूँ, बहुत क्राउड को पागल किया है। अब बिना दारू के हो जाता है, अब मैं करता हूँ। You've learned state. या How to be in that state. हाँ, आई एंजॉय विस्की, Hmm. ठीक है, आई लव इट, बट विद माई फ्रेंड्स वीकेंड्स पे, और एक तरीके से मेरे को मज़ा आता है पीने का। अब जैसे कि आपको मिल गए, किसी को मिल गए, एक आधा पैक लगा लिया, इट्स ओके, वो तो, बट हाँ कैसे पीनी है भाइयों के साथ, वो वीकेंड पे होता है अपना अब अच्छे से। What changed? How did you sort of get your act together? वेल फॉर मी तो आई वॉज लुकिंग फैट, हाँ. हाँ मेरा तो मुंह भर गया था पूरा। बट आप जब लास्ट टाइम आए थे आप तो बहुत ही पतले थे जी पर आपका चेहरा आप कह रहे हो मोटा हो गया था, फूल गया था। हाँ, अनहेल्दी वो फैट हो गया ना अपना, फिर वाटर order वेट करना हो गया बाहर ज़्यादा, खाना। वाटर वेट इतना था, पूरा मुंह फूला हुआ है, स्किनी फैट है, तो उसको चेंज करना I पड़ा can था। relate. I'm in that या zone. सो आई थॉट के जब, क्योंकि यार पहले ऐसा होता था भाई कि हम लोग जब म्यूजिक से पैसा नहीं कमाते थे ना, जब आप खुद अकेले पैसा नहीं कमा रहे हो इट्स ओके, पर जब आप बहुत सारे लोगों के साथ पैसा कमाने लगते हो और आपके सिर से भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, तब अलग चीज़ें हो जाती है भाई, तब ना, तब फीलिंग आती है कि You can't fuck it up. हाँ यस, तब एक रिस्पॉन्सिबल फील होता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बंदा जितना मर्जी कह ले भाई कि तुमने तो वीडियो अच्छी नहीं बनाई, जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूँ बड़े डाली, उस दिन 20 बंदों की दिहाड़ी लगती है, वो दिहाड़ी मैं करता था, और 20 बंदे काम है, कोई मेकअप वाला है, कोई लाइट वाला है, कोई स्पोर्ट बॉय है, कोई कुछ है, सो यू नो पीपल वर्क, दे अर्न फ्रॉम माई थिंग, सो आई हैव टू बी, वीडियो में 20 लोग लगते हैं। लग जाते हैं भाई। अब जैनकर्स की वीडियो थी मेरी, आप देखोगे गली गैंग से आई थी, लगे थे उसमें, एक्टर्स हैं उसके अंदर, आप देखो ना, पेड एक्टर्स हैं इतने सारे। मैंने अभी ऑलरेडी की क्या बता रहा था आपको, उसमें कितना खर्चा हुआ, दीवाना का क्या लगता है भाई, खर्चा तो होता है, सब चीज़ें होती हैं। भाई हम कैसे आपको record जो करेंगे अपनी road चीज़ें trip? आपको जो चीज़ें अगर ये लगती है कि भाई इसमें तो पैसा ही नहीं लगा, देखो वो उसका भी पैसा लगता है, हर चीज़ का पैसा लगता है। नहीं हम अपनी कैसे रिकॉर्ड करेंगे बहन, हम तो बहुत कम नहीं वो लोग आप बता करने रहे को तो 2 बंदों में भी कर लो, कर ही रहे हैं वो तो मेरा तो शौक है अपना, अरे ये तो अपनी पहले तरीका है भाई बहुत करने बड़ा का। प्रोडक्शन क्रू करा था पर देन आई रियलाइज कि जो उसका कॉन्सेप्ट है ना वो इंटीमेट है, उसकी हाँ मांगन हो मतलब जाएगी। मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, ऐसे दीवाना में हमने 4-5 कितने बंदे थे, टीम तो 5 बंदों की थी, बाकी तो फ्रेंड्स ही थे। पैसा उन्होंने लिया नहीं मेरे दोस्तों ने जो मेंशन हुए एंड में, और सबका शुक्रिया अदा किया जो वीडियो में, वो तो सब फ्री में उन्होंने हेल्प करी है एक तरीके से। बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि 5 वीडियो बनाता हूँ तो 3-4 में तो ऐसा होता ही है, बजट लगता है, लोगों को भी काम मिलता है, उनका भी पोर्टफोलियो बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं वहाँ पे अगर नशे में लुढ़कता भिड़ूँ और एक रॉक स्टार पर्सोना बनाने की कोशिश करूँ, दैट इज़ नॉट मी नाउ, I don't do that. Crazy. I'm very responsible about it and I really respect it because अभी तो मैंने आपको बताया, जिस घर में हम लोग फ़ोन पे रेडियो सुनते थे, अभी उस घर में एंटर करते हैं, 50 चीज़ें हैं, यू नो, इतने कंसोल हैं, वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो सब इस काम की वजह से तो है। तो ये सब नहीं कर सकते यार अपन। I've met many successful people, some of them who achieve success after a lot of hard work. खासकर वो जो जिनको लगता है कि यार मैं बहुत ही जीरो से, क्या कहते हैं, 100 तो नहीं बोलूँगा, 0 से 90 या 70 आया हूँ। Many of them have this phobia कि एक दिन ये सब कुछ जा सकता है, because उनको वो unearned सा लगता है, ये लगता है ये बड़ा नया सा, ये टिकेगा नहीं। आपको लगता है ऐसा? मेरे को लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये नई तो हर बार लगती हैं,
अभी भी, चाहे मैं कितना भी कॉन्फिडेंट लगूं किसी भी इंसान को, एक्सपीरियंसेस अभी भी हिट करते हैं बहुत ज़्यादा और लोगों से What was जिनको the last one? स्टार्टिंग से मिले हैं, वो अभी भी मेरे को लगते हैं। बट मुझे ये नहीं लगता कि ये चीज़ें कभी जाएंगी, नहीं, वो मुझे लगता है मैं बढ़ाऊंगा ही, वो मैं बढ़ाता रहूँगा। कभी गाड़ी मर्सिडीज लेंगे तो उसके बाद कोई और बड़ी गाड़ी लेंगे, घर लेंगे तो 4 घर और लेंगे। वो मेरी सोच ही नहीं है पहले दिन से ही। वो मेरी सोच ही ये थी कि आज अगर एक रोटी के लिए भी दिक्कत हो रही है तो कल को यार ऐसा होगा कि वो है। मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में, ऐसा सोच करके काम करने में कि और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे, सपना और बड़ा देखेंगे, जाने ही नहीं देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, चला गया तो फिर क्या है, चला गया तो चला गया, बट मैं नहीं जाने दूंगा अपनी तरफ से, बिकॉज आई हैव दिस हसलर मेंटालिटी दैट आई स्टैंड ऑन, कि मैं हमेशा उसको मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरे पास है। बट अभी भी वो फीलिंग तो मेरे को अभी भी आती है। What was the last one? लास्ट वन तो मेरे को तो कैब में बैठने में भी लगता है, गाड़ी में आने में भी लगता है, इसमें क्या है। है कि लास्ट नाइट में अपने एक दोस्त के साथ था, हाँ, of course. तो ये जाना था, इतना थोड़ा सा एक्सेल मंगाई, हाँ, तो उसने बोला यार क्या हो गया एक्सेल में, कभी अब वो भी क्योंकि मिडिल क्लास ही है मेरा दोस्त, तो हम लोग एक्सेल में जब बैठे तो उसने बोला कि भाई एक्सेल क्यों करी। मैं कभी यार मैंने 2 वोडका के शॉट लगाए थे, मैं कहा यार वोडका शॉट लगाने के बाद छोटी गाड़ी में नहीं बैठता मैं थोड़ा मेरे को गाड़ी थोड़ी बड़ी चाहिए होती है। बट मैं ये जो बातें करता हूँ ये असल में आयरॉनिकल होती हैं, अंदर से अभी वो बच्चा है जिसको ये करके लगता है कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ एक्सेल, सही बात है। तो करूँगा, बस ये है इतना। ये एक फीलिंग है जो अपने आप को देता रहता हूँ कि हाँ कर सकता हूँ। फिजिकल गेम्स खरीद सकता हूँ, एक दिन देखता था शेल्फ में, हाँ, आज घर पे है इतनी सारी फिजिकल गेम्स पुराने कंसोल्स की और ये सब कुछ। वो एक तरीके का मेरा बचपन का ही है जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे गेम खेलने के। आज अलमारियां मैंने भरी हुई हैं इसी चक्कर में। What's the most बस memorable game you've played? Single player, story, sandbox style? मोस्ट मेमोरेबल तो भाई For me, it was the Godfather game. I actually played it end to end. PS2 पे। हाँ, अच्छा वो यार यार मैंने मेरा PS2 तोड़ दिया था उसके बाद। मैं तो अच्छा मैं तो 16 भाई घंटे असल खेला। में मैं मतलब आपको बताऊं तो आपको पता ही है, मतलब हमारी तो थे नहीं हालात कंसोल खरीदने के, तो दुकान वगैरह पे जाते थे। मैं अगर आप में से पूछो कि एक सबसे मेमोरेबल गेम, तो हमने तो मल्टीप्लेयर ज़्यादा खेली है, क्योंकि सिंगल प्लेयर के हम इतनी प्रिविलेज थी नहीं कि दुकान पे जाके सिंगल प्लेयर खेले हम लोग। किसी के साथ खेला? आधे घंटे में आप क्या ही सिंगल प्लेयर गेम खेल लोगे। हाँ, वही स्मैकडाउन पेन और अर्बन रेन होती थी, मेमोरेबल तो वही थी। बट उसके बाद पिछले 2 साल में जो मैंने रेल बनाई है प्ले स्टेशन की, वो भी PS2 कह लो, 3 कह लो, 4 कह लो, सारी गेम में सारे टाइटल खेले मैंने। जैसे मैं बताता हूँ पर्सनली, मैंने लोग बोलते हैं Red Dead Redemption 2 मैंने खेली, मैं रोया। हाँ मैं तो इसी रूम में लगाया था, पीसी है, मैं मुंबई में पढ़ा है। अच्छा जी, मैंने काम छोड़ दिया था 4-5 दिन, क्योंकि मैं उस गेम में था अच्छा और मेरी ये पीड़ा सी हो गई थी, दर्द होना शुरू हो गया था। Because when I play a game, I'm obsessed, मैं छोड़ नहीं सकता उसको। मेरा खेलने का तरीका आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं एक टाइम पे 2 गेम्स खेलता हूँ, एक नाइट एक डे। 2 तरीके की गेम्स होती है मेरी। नाइट वाले में जैसे रेजिडेंट एविल सीरीज है या अनटिल डॉन सीरीज है, ऐसी कोई डोपामिन ज्यादा, हाँ। थोड़ी सी डे में अलग है, RDR GTA, ये ऐसी ये डे गेम्स है मेरे लिए, ये रात वाली गेम्स नहीं है। तो ऐसे में दो गेम्स एक टाइम पे खेल रहा होता हूँ। अभी मैं कौन सी गेम खेल रहा हूँ? अभी मैं घोस्ट ऑफ त्सुशिमा खेल रहा हूँ। दैट इज माय I've heard it's one of the most beautiful games in the world. ब्रो, इट इज सो ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। बहुत बहुत खूबसूरत गेम है, बहुत मजा आता है। हाँ ये है कि थोड़ा सा कॉम्बैट बहुत अच्छा है, बट आप समझ लो कि क्या है GTA, क्या है आप Open world sandbox style game. हाँ मतलब आप GTA में कुल मिला के तो आपका मिशन ये है, मार दिया, चोरी कर लिया, गाड़ी ले ली, यही इसी का थोड़ा सा मर गए, गाड़ी ले ली, ये है ना। वैसे घोस्ट ऑफ त्सुशिमा में है, कॉम्बैट किया आपने, किसी को बचाया, कुछ फतेह किया, आगे बढ़े, किसी का बदला ले लिया, कुछ हो गया। बट ओवरऑल पूरा जो पैकेज है उसका स्टोरी बहुत अच्छी है, मजा आता है। बंदा स्टार्ट करेगा तो खेलेगा। और 5 पे खेलो, बढ़िया अपना
मज़ा आएगा। या पीसी पे खेल लो अपना, जैसे भी है तो पीसी वर्जन होगा ही उसका, पुरानी गेम है। लगा मेरे को अच्छा, बड़ा जापान, बड़ा विचित्र विचित्र लैंड लगा अभी मेरे को उसका भी। एक और आ रहा है, गोस्ट ऑफ, एक और पार्ट आ रहा है, मेरे को आई कांट रिमेंबर द नेम, बट हाँ उसका ट्रेलर मैंने देखा, बहुत अच्छा है। What's the wildest place that you guys have traveled to because of the tours? I mean, I'm sure you've got fans in all the main metropolitan cities. चंडीगढ़ तो of course हो ही गया, पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भाई? बेंगलोर, और क्या है? सारी वाइल्ड ही है जितने गए हैं लोग, तो वाइल्ड ही होते हैं कहीं भी गए हैं, एक्सपीरियंस हमारे तो वाइल्ड ही रहे हैं अभी तक, क्योंकि जितने भी चाहने वाले अपने मिलते हैं वो खतरनाक ही हैं, सब एक से एक ही हैं। यार मैं मजा फील आता कर है। सकता हूँ, मतलब आप लिरिक्स सुनोगे जब आप, तो हाँ, आपको मतलब लगता है कि you want to show it to a friend. you get used to it, still they surprise you every time with something। मतलब जैसे ही मैं यूज्ड टू होने लगता हूँ और जोश से लोग मिलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। Define जोश, किस जोश से? लुधियाना करा शो, और लुधियाना में पहला शो करा था, हम्म, पंजाबी लोग थे सारे अपने, और मैं देख सकता था चेक शर्ट्स और जो बूट कट पैंट्स और चेल्सीज, तो मैं जानता था ये सब मेरे ही लोग हैं ये पंजाबी भाजी लोग हैं सारे अपने। तो शो करा, उसकी भी एक एनर्जी थी, और मेरे को बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हम पंजाबियों का ना एक होता है, हम खड़े हैं गा, on the spot. एक नहीं, जब कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है स्टेज पे, के जेब में एक हाथ है, गा, देखते हैं, ये होता है, ये पंजाबी ऑडियंस खड़ी है, ऐसे होता है, देख रहे हैं, hand is the gun. या मतलब देख रहे हैं मेरे को, और मैं भी गा रहा हूँ पूरा, ये वो कर रहा हूँ पूरा स्टेज पे, और पूरा। Why is the hand on the gun? No, not hand on the gun, I said the hand in pocket अच्छा, and the swag on। impress कर। हाँ, सुना, हाँ, पैसा दिया, सुना, हिला के दिखा दे। ये तो दिल्ली का middle- so I loved it। मेरे को एक थोड़ा अलग थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, और कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं कि उस एक्सपीरियंस से मुझे मतलब क्या समझ में आया, वो ये था कि जो हमारा म्यूज़िक है, जो हम अपन पंजाबी रैप म्यूज़िक कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये पहली बार हो रहा है ऐसा। क्या हमारे यूजर्स हमारे कम है इंडिया के, यूएसए से, सो हम स्ट्रीमिंग पे कम पैसे बनाते हैं आर्टिस्ट्स। नहीं, चक्कर क्या है ना कि यहाँ पे जो पैसे कम मिलते हैं, जो भी हमारा रेट है इस पे, वो इस वजह से, जहाँ तक मेरे को जो जानकारी है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे पेड यूजर्स कम है, अच्छा, फ्री यूज। तो इस वजह से वो लोग हमें पैसा कम देते हैं। सो यू आर सेइंग at a million streams you're making nothing, at a billion streams to million एट मिलियन स्ट्रीम्स यू आर मेकिंग जितना मनी, उससे ज़्यादा आपको कमाना चाहिए। अगर आप, अब जैसे अगर यूएसए में आप देखेंगे आर्टिस्ट जो कमा रहे हैं, अब मैं तो देखो, जो जॉनरा मेरा है वो हिप हॉप है, तो मैं तो मेनली यूएस का रेफरेंस लूँगा पहले, उसके बाद यूके, है ना, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री में जो डोमिनेटिंग प्लेयर्स है वो वहाँ से हैं, करेक्ट, देखा जाए तो, है ना। तो वो लोग जब जैसे अभी दीवाना फटा या जितने भी गाने हमारे चलते हैं या जो भी है, वहाँ पे होते तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। एडसेंस विद यूट्यूब एडसेंस, हर चीज़ के साथ मैं रेट तो ज़्यादा मानता है। ही यूट्यूब एडसेंस इट्स वीडियो, इट्स प्रीमियम, बट अगेन मैंने ये भी देखा है, मेरा एक दोस्त है, उसकी ऑडियंस 30% यूएस की है। हम जो कमाते हैं एडसेंस में इतने बड़े चैनल के साथ, वो सेम चीज़ कमाता है, ऑलमोस्ट सेम नहीं, like 20% lesser than us with an audience like that. So the real question is, you guys said कि now money is coming in, but it's not coming in through fucking streams. It's clearly coming in through shows. पर अगर शो की टिकट भी बागी मंडा की और डॉक्स की शो की 700 रुपए है, नहीं, ऐसा और नहीं है, रेवेन्यू ले रहा है, बैलेंस है पूरा, सब चीज़ों से आ रहा है पैसा, तो जाके एक अमाउंट जनरेट होती है। चाहे इवन इफ इट्स 1 cent, स्टिल इट काउंट्स, sure, वो टोटल अमाउंट में, है ना। तो what's the breakup for like an independent artist in India? वो तो सोलरली उस पर डिपेंड करता है भी आर्टिस्ट कितना बड़ा है, क्या उसके नंबर्स हैं, क्या उसके मोड्स हैं ऑफ मेकिंग मनी। जैसे मेरा देखा जाए तो स्ट्रीमिंग है, ऑब्वियसली यूट्यूब है, उसके बाद शोज़ हैं, उसके बाद फिर हम कोई प्रमोशन अगर कर दें, कोई ब्रांड डील कर दें, उसके पैसे हैं। उसके लिहाज में मैं तो मतलब हमारी सारी टीम बड़ी पिकी है अभी, ब्रांड्स के साथ, तो but क्या ही unlike काम a करना है। YouTuber, you're not releasing videos every
2 days, 3 days, हाँ. 4 days. You're releasing them barely. हाँ नहीं, नॉट बेयरली बट व्हेन इट्स नीडेड, और आई लाइक टू कीप अ बैलेंस. जैसे कि अभी जब आप अंदर थे, मैं बाहर बैठा था पॉडकास्ट से पहले, तो भाई थे आपकी टीम से, उनसे बात हो रही थी, तो वो भी पूछ रहे थे मेरे से, पैसों वैसों की बात हो रही थी कि और व्यूज़ की बात हो रही थी, स्ट्रीम्स की, कि भाई क्या ज़्यादा चलता है फिर आपका, स्पॉटिफाई पे ज़्यादा आता है या यूट्यूब पे ज़्यादा आता है. तो मैंने उनको भी यही बताया कि भाई ये पर्सनली मेरा देखिए, क्योंकि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है, तो मेरा Sure. ये है कि आई कीप अ बैलेंस. आपको यूट्यूब पे भी व्यूज़ दिखेंगे, आपको स्पॉटिफाई पे भी स्ट्रीम दिखेंगे, और एप्पल पे क्योंकि कम आते हैं, क्योंकि पेड यूज़र्स कम है, कम लोग एप्पल म्यूज़िक चलाते हैं, तो यू नो उस हिसाब से अच्छे उस पे भी स्ट्रीम आते हैं. यूट्यूब वीडियो वाला रैपर बनने का मेरा कोई शौक नहीं है, रील पे चल जाता है वो वाला मेरा शौक नहीं है. सब जगह पे जो Shows lucrative होते हैं. हाँ बिल्कुल होते हैं. शोज की क्वेरीज हमारे पास तो आती, मतलब हमेशा होती है इन द हैंड, बट ऐसे तो करते ही रहे हैं. बट मेरे को आप इतना फ्रीक्वेंटली टूर क्यों नहीं करते हैं, जैसे बाकी बहुत सारे लोग करते रहते हैं नॉन स्टॉप? यू डू इट वेरी इनफ्रीक्वेंटली. लाइक आई वुड लव टू कैच अ बागी बंडा कॉन्सर्ट. यू आस्क्ड मी कि आप मुंबई में हो, मैं नहीं था उस टाइम पे, बैंगलोर में था. व्हाई नॉट गो लाइव एज मच, बिकॉज इट विल मेक यू मोर मनी. इवन इंस्टाग्राम पे मेरे को तब लाइव आना पसंद है जब मेरे पास कोई न्यूज़ हो. तो जब मेरे पास कुछ होता है तो मेरे को लगता है कि अभी जैसे एल्बम निकली है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, टूर प्लान कर रहे हैं. मी जसकरण डॉग्स, वी आर प्लानिंग अ टूर. तो मेरे को मज़ा आता है जब कोई भी चीज़, जब मैं नई बनाता हूँ, कुछ बात करने के लिए हो, तो फिर मेरे को लगता है. वैसे अगर ऐसे ही मेरे को बकचोदी काटनी है लोगों के साथ, या फिर जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि दैट आई कैन डू शोज, वेल एवरीबडी नोज दैट आई कैन डू शोज, आई हैव शोज, पीपल वांट टू सी मी, आई नो दैट. और ऐसा इसका कोई गुमान नहीं है, आज है कल ना हो, परसों फिर से हो. पर हाँ है, बट एक तरीका है. मेरे को लगता है मैं हर बार जब जाऊँ तो कुछ नया लेके जाऊँ, एक एनर्जी हो. हमेशा मेरी ऑडियंस जब मुझे देखे तो उनकी आंखों में एक आशा हो कि भाई आज ये वाला गाना ये पहली बार परफॉर्म करेगा, या आज ये गाना ये परफॉर्म करा, ये मैं सुनना चाहता हूँ. मैंने बागी भाई से ये गाना सुना नहीं है. मेरे को इनके, क्योंकि यार कुल मिला के मैं कोई सुर तो लगाता नहीं हूँ, ठीक है. मेरा बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है, लिखना है, गाना है, रिलीज करना है. फिर भी लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, देखा जाए तो वो मेरे साथ वो गाना चाहते हैं, जिसको बोलते थे वाइब करना चाहते हैं, है ना. तो मैं उनकी आंखों में वो जब स्टेज पे जाऊं तो वो चीज़ देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ वो वाइब करना चाहते हैं. जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं करना चाहते, मैं स्टेज से उतर जाऊंगा. ओके, इमेजिन एक बंदा जो हिप हॉप फोटोग्राफर है, वो एक फोटो लेता है पीछे से, जहाँ शो खत्म हो गया और आर्टिस्ट ऐसे खड़े हैं सारे के सारे हाथ करके, पर दो बंदे खड़े हैं, दे हैव बीन विद ईच अदर फ्रॉम डे वन. व्हाट्स दैट मोमेंट फॉर यू गाइस? तो यार मतलब वो तो हर दूसरे दिन एकदम से याद आ जाता है. हम ऐसे कुछ सतारा में घूम रहे हैं, कुछ ऐसे होता है, तो जिस दिन यार ये तो 10 साल पहले आप इदा होंगे सी होंगे. सॉरी आई सेड दैट इन पंजाबी. नहीं, इट्स ओके, आई गॉट इट. 10 साल पहले हम यहाँ घूमते थे, यहाँ रहते थे. तो वो तो यार मतलब हर दिन ही है. वी वेक अप, वी कि यार आज म्यूजिक बनाना है, आज हम गेमिंग करते हैं, आज हम ये करते हैं. तो बस वही है भाई. मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है कि अच्छा, वो बैक इन द डेज होता था, वो याद आती है चीज़ें. अब तो लाइक इट्स गोइंग विद द फ्लो एंड ऑल. So I feel like you're emotionally a very reasonable, level-headed guy. Is that true? What? Him. Talks. That's all I gotta say, man. नहीं, बट स्टार्टिंग से it's been like कि मैं इतना नहीं बोलता. So I'm a listener. तो he speaks a lot. हाँ, produce. तो मैं सुनता हूँ, ये बोलता है कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैं सुन, बस I just hear it. आज इसने बोला घर पे नहीं पॉडकास्ट सुनूंगा, साथ में बैठ के सुनूंगा. So I just came here, सुनने के लिए. नहीं भाई. No, but the support, I support him. I wish he goes big. I wish for every person that I work with goes बढ़िया भाई. मैं तो I'm always there with someone that सबके लिए करता है. हाँ. सबके लिए करता हूँ मैं. हमारे वाला काम कर रहा है, लेकिन विश्व लेकिन what's the high end for a producer? Because you don't rap, you don't say the words, you make the beats, right?
So you work with a lot of people. What's the high end for you? I mean, most well, experiences well are you with him. you can tell about the high जो भी है तुम्हारा इस पे प्रोड्यूसिंग पे, बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरे साथ काम करता है डिफरेंट होता है, किसी और के साथ काम करता है वो डिफरेंट होता है, और आर्टिस्ट के हिसाब से अप्रोच रही है डॉग्स की हमेशा से, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पहली एल्बम से ही मैंने मोस्ट ऑफ द जो मेरी प्रोडक्शन रही है वो डॉग्स के साथ ही रही है। तो और मैं बहुत ज़्यादा नोजी आदमी हूँ, मैं अपनी नाक घुसाता हूँ हर चीज़ में, वो वीडियो एडिटिंग से लेके प्रोड्यूसिंग से लेके कवर आर्ट से लेके हर चीज़ में मैं बैठा होता हूँ। तो हमेशा जितने भी इसने प्रोडक्शन करी है मेरी एल्बम्स में, मैं हमेशा साथ में रहा हूँ, और वो वैसी रही है जैसे जैसे मेरे दिमाग में मैं पहले पूरा एक करैक्टर सोचता हूँ, उसका साउंड सोचता हूँ, वैसा ही इसने किया। बट जिस भी अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया, जैसे जसकरण के साथ कर रहा है, बिल्कुल अलग होता है, टोटली डिफरेंट। एंड यू नो डॉग्स ऑल्सो मेक्स बीट्स वैसे बिना किसी आर्टिस्ट के भी बनाई पहले बीटें, वो डिफरेंट होती हैं, किसी आर्टिस्ट के साथ डिफरेंट होता है। ये मेरे को अच्छा लगता है, और ये कई प्रोड्यूसर्स के पास नहीं होता। दे ट्राई टू मेक देयर ओन साउंड इतना ज़्यादा कि दे डोंट अंडरस्टैंड आर्टिस्ट। कई बार ये भी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। आई थिंक वो प्रोडक्शन विच होती है, लाइक आई यूज्ड टू भाई प्रोड्यूस, पंजाबी में बात करो, कोई दिक्कत नहीं, सब वो समझ मेरी जाऊंगा। निकल जाती है हाँ ऐसे ना। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाऊंगा। तो आई थिंक वो प्रोडक्शन में ही रहती है ऐसे। लाइक आई यूज्ड टू डू EDM पहले, तो उसमें इट्स लाइक कि इतना स्पेस नहीं है किसी सिंगर के लिए, रैपर के लिए, यू नो, टू डू दैट। बट सही बात है, स्वीडिश हाउस माफिया बोल रहा है पे 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 हाँ, तो पे 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 पे। तो उसमें इट्स लाइक यू कैन यूज वोकल्स, वो चॉप करके जो भी उसका सीन होता है। बट हिप हॉप में ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू गिव स्पेस टू द आर्टिस्ट और द रैपर। Yeah, but it's like, तो think about it. You got all these artist big ego or the guys rapper, coming हाँ। in, right? इतने बड़े बड़े ego वाले सब हाँ, बंदे मतलब आ रहे सिंगर हैं। या रैपर है ना आर्टिस्ट और द रैपर। हाँ सही Singer बात मतलब है, अलग वो क्या बात है है? ना, सही बात। साले हम Singer तो और the आर्टिस्ट होते ही rapper। नहीं, हमारा क्या है। मतलब मैं हाँ, समझ सकता, मतलब for me what is spectacular is, look bro, हर इंसान बोलता है भाई मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। Taking a step back and letting the guy do what he must while you provide the beats. It's like a service. It's like almost like hospitality, where you're adding your own sound, like it's a soundscape for these raw vocals. Otherwise तो फिर वो साइफर में आप सुनते हो ना, सिर्फ कुछ और है नहीं, right? And it shapes, you play a role in the way that it shapes. If I'm at home, मैं पहली बार डिस्कवर करता हूँ बागी मुंडा, कॉमा डॉक्स, एक आर्टिस्ट, एक उस पर लिखा होता है गाने पे, मैं स्पॉटिफाई पे चलाता हूँ, मेरे दोस्त ने बताया, एंड एक बीट प्ले होती है, पहले एक ऑर्गन आता है, जो भी आपने जितने भी अपने उस क्या बोलते हैं उस वायर फ्रेम पे जितने भी 6-7 वो लगा रखे हैं आपने, और मेरी लाइफ बदल जाती है। that impact wouldn't be there if it's just like a man saying मैंने ऐसे करा, pause, मैंने ऐसे करा. It's instrumental, but again you got to deal with egos, you got to deal with like big personalities, and they take up a lot of space. You not feel like कि मैं यहाँ पे जो ये बोल रहा है मैं यहाँ पे बताऊँ कि तू ये गलत कर रहा है, because you know like there is a producer archetype which is like more introverted, more like in the studio, more like on the machine. You not feel like I should also express myself through the music more, through other stuff? I think I did that through music because मैं इतना बोलता नहीं हूँ, या मैं like I used to write or rap, I used to do that. But फिर जब थोड़ा ज़्यादा म्यूज़िक में I got involved और क्या कहते हैं मैं और सीखने लगा ये चीज़ ना, because मेरे को मज़ा आता है म्यूज़िक बनाने में, तो I thought कि यार this is what I'm thinking, if a person should listen to this beat, इस पे वोकल नहीं है तो वो बीट भी रिपीट पे सुन सकता है. You can listen to that on repeat, you can enjoy that without the vocals. तो मेरे लिए आई थिंक वो चीज़ रही है. सो वोकल्स ऐड ऑन होते हैं, सो इट बिकम अ मास्टरपीस. सो आई थिंक आई वर्क इन दैट वे. लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी हम बेताज बादशाह के बारे में बात कर रहे थे अराउंड द सेम टाइम. हाँ जी. It's my favorite EP. I like LDT, I like the new one as well. But मैं उस टाइम पे एक ऐसे फेज में जा रहा था कि मैंने हर गाने से बहुत डीपली रिलेट करा, और वो साउंडस्केप थोड़ा कैसे समझाऊं, मतलब मेरे को वर्ड्स नहीं है, थोड़ा विंटेज है या थोड़ा आई डोंट नो, इट्स मोर 90s. I don't know what it is, but I found myself I used to send him screenshots कि भाई देख मेरे top 25 टॉप सॉन्ग्स के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6 पे ये वाले गाने चल रहे हैं. तो मैंने वो गाने बहुत सुने. It influenced how I thought about the world. Really I told him कि मैं लंदन में जा रहा था और like I was trying something different,
और मैं सिर्फ बेताज बादशाह सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मेरे मन में ना म्यूजिक वीडियो बननी शुरू हो गई थी, इतना इन्फ्लुएंशियल म्यूजिक था. So those were very different. But then the new album comes out, Sallu Returns, और उसमें तो पैच, it's a lot of hard hitting, a lot of that, except for Divana. Most of the songs are very, very hard hitting. Why do you guys make that choice? You're trying to make more bangers? क्या like? जितने भी लास्ट शोज किए हैं, सब शोज जितने भी शोज पे ऑडियंस आई, सारी ऑडियंस, मतलब कैसे समझाऊँ, एक तो जो मेरे शोज पे आता है उसको पता है एक एनर्जी जो होती है, इतना हाई होता है, और लोग पागल हो जाते हैं, जो जब हाइपर म्यूजिक बजता है लोग जंप करते हैं, इतने सारे लोग आपके साथ जंप कर रहे होते हैं, वो एक फीलिंग थी. और क्योंकि थोड़ा सेल्फ अवेयर कह लो या सोसाइटी के लिए भी कई लिरिक्स लिखे हैं मैंने, और कई गाने हैं ऐसे थोड़े डीप हैं, वो मैं जब परफॉर्म करने की कोशिश करता था, लेकिन लोग उसी एनर्जी में थे कि आने दो, एक और आने दो, है ना. तो मोशपिट जैसे चालू हो गई, और मैं बोलता था कि भाई छोड़ो, मैं प्लेबॉय गाड़ी थोड़ी हूँ, आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. लोग अरे आने दो. लोग की ये एनर्जी थी. तो ये काफ़ी, और ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं, मैं खुद, मेरा आप अगर देखोगे कि जैसे मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं एक जगह खड़ा होकर स्टैंड पे मैं परफॉर्म कर ही नहीं सकता, मेरा वो है ही नहीं हो रहा. आई लाइक टू गो वाइल्ड पूरा, और पूरा मतलब डेंट पड़ना चाहिए पूरा ज़मीन पे, जब जब मैं पैर मारता हूँ स्टेज पे, तो मेरे को वैसा अच्छा लगता है परफॉर्म करना. तो वो, और ऊपर से ये जो संजू सल्लू है, इसका भी पहले भी एक पार्ट बनाने की हमने कोशिश करी थी, तब बना नहीं था, और अब जो है पूरा हमें बैकिंग थी और सही वक्त था, और मुझे लगा कि यार इस एनर्जी को अब 100x कर देते हैं, अब क्राउड को पागल होने देते हैं, और अपने आप को भी करते हैं, पूरा लगाते हैं जोर. तो फिर हम बैठे एल्बम के ऊपर, और अपना गोल पूरा क्लियर था कि ऑडियंस सुने तो पागल हो जाए, और हमारा कंटेम्प्रेरी अगर सुने तो इनसिक्योर हो जाए. मतलब कि अब आई डोंट नो इसे मैं सभ्य शब्दों में अब कैसे करूं, कोई नहीं, मैं बोल देता हूं, पर उसकी गांड फट जाए. कुल मिला के बात ये थी, ये पहले दिन से अपना गोल था उस एल्बम पे, और आई थिंक हमने वो, अगर आप देखेंगे हमारे आसपास, तो वो चीज़ हमने कर भी दी है अब. लेकिन इस पे सिर्फ हम तीनों ने काम किया नहीं है, बहुत सारे और लोगों ने काम किया है. फैट बॉय रकून ने काम किया, सर्कल टोन ने काम किया, पूरा मास अपील इंडिया लेबल से रिलीज़ हुई है. तो बहुत सलाह देने वाले भी होते हैं लोग, तो सलाह भी मिली हमें कि भाई ये कमर्शियल भी चाहिए. तो फिर हमने जो है हमने दीवाना बनाया, और मैंने आपको जैसे बताया पहले कि 2 बीट्स उस टाइम सुनाई हुई थी, एक सुपरस्टार की थी, दीवाना की थी. दीवाना पे मेरा गोल पहले दिन से क्लियर था कि एक हमें सलाह तो मिली हुई थी कि यार थोड़ा बनाओ कुछ अच्छा गाना, कुछ अच्छा गाना भी बनाओ यार कोई. तो फिर में कोई ना कोई तो कहता है तो फिर मैंने कहा कि देखो हम बिल्कुल उल्टा काम करेंगे. जो स्टार्टिंग हमने जहाँ से की है, ये फाड़ दूंगा, ये डाल दूंगा, उखाड़ दूंगा, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर गाने में बिल्कुल ही एक हार्ड ब्रोकन इंसेल लूजर माइंडसेट से गाना बनाया है, जो है ना. और मैंने कहा इसका बिल्कुल डिफरेंट करेंगे, पूरा प्योर कर देंगे, प्योर गाना, प्योर, जितना प्योर कर सकते हो उतना कर देंगे. सॉन्ग फॉर वर्जिन्स बाय वर्जिन्स, मतलब यू विल बिकम वर्जिन आफ्टर लिसनिंग टू दैट. इतना ज्यादा प्योर करेंगे. और ये मेरा क्लियर था, जो मैं ज़्यादातर जो मैं म्यूज़िक बनाता हूँ उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन होता नहीं, मैं क्लियर रहता हूँ पहले दिन से, मेरे को क्या बनाना मैं वही बनाता हूँ. वो अपनी रूपरेखा हम पहले दिन से वैसे ही रखते हैं गाने की. मैं क्लियर था, मैंने कहा कि मैं ये एक कॉलेज स्कूल लव स्टोरी है, टीनेजर लव स्टोरी है, ये क्लीन रहेगी, प्योर रहेगी, और ये हर कोई बंदा सुन सकता है. वैसा ही इसका बनेगा, इसकी वीडियो भी वैसे ही बनेगी, लिखा वैसे ही, बनाया वैसे ही, चल गया. That's it. आपका वर्क स्पेस क्या है? मेरा वर्क स्पेस तो मेरे घर से ही है मेनली. ज़्यादा वक्त मैं घर पे स्पेंड करता हूँ अपना, और बाकी स्टूडियो, उसके अलावा दोस्तों के साथ घूमना फिरना और फन करना. It's crazy that none of us have real jobs. Neither do I. मतलब I have a job, but It's not a job, bro. it is a job. Not a job. But नहीं, इसमें आप देखो ना, एक पर्सन जो है जो जॉब करता है,
बिल्स पे करता है, टैक्स पे करता है, Sure. प्रेशर होता है उसके ऊपर, उसको जवाबदेही भी होती है, हमें भी है, बिल्कुल सब है। सब चीजें हैं। वो पंच इन पंच आउट अगर आप बोलते हो कि हाँ भाई सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, चक्कर ये है कि आवर्स मुझे देने पड़ते हैं दिन में। You can't just sit बट around हाँ casually. बट एक बंदा जो हायर पोस्ट पे है, कह लो, क्या वो जॉब नहीं कर रहा? उसकी जॉब बहुत जो है ये है कि हायर पोस्ट पे है और बहुत लग्जेरियस है और बहुत ही है। आई हैव दैट जॉब, आई एम काइंड ऑफ, आई एम अ बॉस बट आई स्टिल हैव अ जॉब। मतलब मेरे को वैसे ही मैं देखता हूँ इस चीज को कि You हाँ think मैं there is बॉस some हूँ। work to be done every single day. हाँ, There is a बिल्कुल, work बिल्कुल, element. There's बिल्कुल, no बिल्कुल। pleasure per se. प्लेजर है। Is work pleasure for you? Like, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूँ, Mhm. अगर एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है जिसने खुद बिजनेस खड़ा किया, अगर वो एक चीज चलाता है, अपने बच्चों के साथ वेकेशन पे है, बाहर है, पर कॉल पे बात कर रहा है, भाई ऐसा ऐसा ये करना, ये माल यहाँ से उठा के ऐसा ऐसा, सब चीजें ध्यान में रख रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, क्या वो जॉब भी करता है? उसकी जॉब है क्या? उसको बोल सकते हैं हम कि वो जॉब करता है? Yeah, 100%. तो वही हूँ मैं। अगर उसको बोल सकते हैं जॉब, तो फिर मैं भी करता But हूँ। what's your day-to-day responsibility? What is something that you owe to yourself every single day? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट वो हमेशा मिक्स हो रहे होते हैं, तो मेरे को उस पर बैठना है। प्रोड्यूस होते हैं तो इनके साथ बैठना है। वीडियो कॉन्सेप्ट्स लिखने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझे रिसर्च भी करनी होती है On what? on music, on art, and I have to read stuff, I have to watch some kind of Constantly. stuff, not constantly, in a manner But आप अपने enjoy आप को करते हुए। एक higher, जैसे अगर आप पूरे दिन scroll करोगे, it's unlikely that your art will not suffer. अभी मुझे बैठना है, मुझे अभी रील्स नहीं देखनी, मुझे यूट्यूब पे ये चीजें देखनी है। Hmm. अब कोई बंदा ये बोलेगा, अरे भाई क्या है भाई, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, बहनचोद लाइफ तुम्हारी मस्त है, सही है यार, दोपहर को 2 बजे एसी में बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, बढ़िया यार। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, Hmm. आई ट्रीट दिस लाइक अ जॉब। बस ये है कि मैंने निक्कर पहन रखी है, घर पे बैठा हूँ, एसी चल रहा है, मैं कर रहा हूँ काम अपना, मुझे पता मुझे क्या देखना है और मुझे उसका क्या आउटपुट निकालना है। अब जैसे हम 3-3, 4-4 घंटे की फिल्में देखते थे, मैं अभी बात भी कर रहा था किसी से, आजकल कंटेंट क्या है, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, रील्स का, शॉर्ट्स का, हम फोकस करते हैं उस चीज़ पे। हमारा भी गाना आता है, हम डालते हैं कि कौन से पोर्शन की रील डाली जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, राइट। अब वो जो है उससे प्रेरणा लेके नहीं मैं बना सकता चीज़, क्योंकि जब मैं 3 घंटे की फिल्में देखता हूँ तब जाके मैं 3 मिनट की वीडियो बना पाता हूँ, तब जाके मैं रेफरेंसेस यूज़ कर पाता हूँ या कुछ सीख पाता हूँ फिल्म मेकिंग के बारे में, या जो मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इंस्पायर्ड होता है, कह लो कि सिनेमा से या और म्यूजिशियंस से, ठीक है ना। तो मेरे को लंबा कंटेंट देखना होता है, मैं देखता हूँ, शौक से देखता हूँ। अभी भी किताबें मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरे को नींद आने लगती है अब जब मैं किताबें पढ़ता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा कि मैं किताबें पढ़ पाऊँ। मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग है, थोड़ा स्ट्रगलिंग। मतलब क्या है, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी बहुत कम, अंग्रेजी में मेरे को नावल्स पसंद है, जैसे जेम्स हेडली चेज के जसूसी नावल हो गए। हाँ, जेम्स हेडली चेज, अच्छा। हाँ, ये थोड़े से वैसे थोड़े होते हैं, वुमन को ज़्यादा ही सेक्सुअलाइज करते हैं उसके अंदर, और हीरो जो होता है वो जेम्स बॉन्ड टाइप होता है, और ऐसा है। पर स्टोरीज बहुत खतरनाक होती हैं। One recommendation for you, Yeah. your music, the person you are, and your love for drink is Charles Bukowski's Women. मैंने अभी, अच्छा, किताब है ये? हाँ, मैं आपको एक पैसेज, बहुत गंदा चीपड़ पैसेज है, हो सकता है हमारे को यूट्यूब इस पे बैन कर दे। अच्छा, मैं एक पैसेज पढ़ के सुनाऊंगा आपको, क्योंकि ले लो सर, मेरे वाले पॉडकास्ट में ले लो, ये रिस्क, कोई दिक्कत नहीं होता है, हो जाए फिर। नहीं, कुछ नहीं करेगा यूट्यूब, मजाक कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। खुशवंत सिंह अगर जीवित था और वो सब लिख पाया, तो जो चार्ल्स बुकावस्की ने लिखा वो बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। ये बात मैं 2 पैसेजेस पढ़ूंगा। एक पैसेज है, ये ना 56 या 60 साल का है। अच्छा। 2 कॉलेज की लड़कियां इसके साथ हैं, they want to do a threesome with him. It's written in very simple English. Okay. The night I got in bed with them, with me in between,
We were all drunk, and first I grabbed one and kissed and fondled her. Then I turned and grabbed the other. I went back and forth, and it was very rewarding. Later, I concentrated on one for a long time, then turned and went to the other. Each waited patiently. I was confused. Gertrude was better. Gertrude was hotter, Hilda was younger. I re-aimed butt, laid on top of each of them, but didn't stick it in. I finally decided on Gertrude, but I couldn't do it. I was too drunk. Gertrude and I went to sleep, her hand holding my cock, my hands on her breasts, my cock went down, her breast remained firm. ये इंग्लिश लैंग्वेज का राइटर है, मशहूर लोग मतलब बोलते हैं मैं बुकाउस्की बनना है. This is cock and balls, man. पर लोग सोचते हैं कि ये कोई तरह का लो आर्ट है. Cock and balls, हाँ. At the same time, मैं एग्जांपल देने के लिए, when I was young, I was depressed all the time. But suicide no longer seemed a possibility in my life. At my age, there was little time left to kill. It was good to be old, no matter what they said. It was reasonable that a man had to be at least 50 years old before he could write with anything like clarity. The more rivers you crossed, the more you knew about rivers. That is, if you survived the white water and the hidden rocks. Although it could be a rough river sometimes. That's also Bukowski. So two different examples of this drunk writer जो जिंदगी भर नशा करता रहा, जुआ खेलता रहा, फाइनली जाके 60 पे सब लड़कियों ने बोला हम इन है, और वो बोल रहा है उसके अंदर कि भाई मैंने बहुत वेट करा और अब मेरी बारी आई है, मैं छोड़ूंगा नहीं. It's also stuff like this. So I think that I think it's nice. एक राइटर है, उसकी एक लाइफ है और वो उस लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे लिख रहा है. I think it's nice. But I think what I'm saying is that maybe you're discounting the English language because what you're reading is probably boring. If you try Bukowski, if you try these guys, maybe you'll like it. I loved it. मैंने सोचा नहीं था. नहीं, पढ़ के देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है. क्या जाएगा, पढ़ लेंगे. क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए. वैसे लग तो नहीं रहा कुछ सीखने को मिलेगा, पर कोशिश कर लेंगे. कोशिश करने में ये तो बात है. मुझे लगता है रीडिंग में सीखने से ज्यादा एक्सपीरियंस करना होता है. थोड़ी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ोगे आप तो उसके लिए तो आप जिम जा ही रहे हो ना, आप तो बॉडी बना ही रहे हो अपनी, उसको आपको पढ़ने की क्या जरूरत है बेहतर इंसान बनने के लिए. राइटिंग में तो मुझे लगता है जो फिक्शनल राइटिंग होती है, इट्स मोर अबाउट लाइक माय गॉड समवन एल्स आल्सो फील्स दिस, आई एम नॉट अलोन, व्हिच इज व्हाट म्यूजिक मेक्स यू फील, राइट? लाइक आप जब बोलते हो कि साइबर कैफे में पहुंच देखी, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ गॉड इज डेड, राइट? लाइक ओके, कोई और इंसान रिलेट करता है, यू नो, लाइक जो भी आप एक्सपीरियंस बताते हो कि मैंने हुड दी जंग की बिच से ब्लो जॉब ली, एग्जांपल. It's like someone else who's out there feels like, wow, thank God I'm not alone. And music has that power, so does writing. So I think that both mediums. And that's why I'm saying nice to this guy Charles Bukowski, because I have written some shit that I know is like very क्या कहते masses के लिए weird, और वो लेकिन मुझे पता है that happens, and और लोगों ने relate भी किया है, अप्रिशिएट भी किया है मेरी ऑडियंस ने. आपको शेम नहीं लगी गॉड इज डेड लिखते हुए कि यार नहीं सुनने वालों को कुछ को लगा, मुझे नहीं लगा. नहीं, मुझे नहीं लगा. मुझे तो आई स्टैंड बाय दैट. आई स्टैंड बाय दैट ट्रैक. आई स्टैंड बाय दीवाना. बोथ ट्रैक्स इज रिटन बाय सेम राइटर, एंड दोनों के आइडियाज वो बंदा लेके आया कि मैं एक ऐसा गाना लिखूंगा और मैं एक ऐसा प्यार पे गाना लिखूंगा जो उसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगी देखने वाला मासेस में आग की तरह फैले. तो आई फील गुड अबाउट इट. मेरे को उसमें क्या शेम होना, मेरा काम है, और काम अच्छे से हो जाए जब, उससे बड़ी बात नहीं है. बस ये है. मैंने बोला ना, हर गाना लिखते हैं, बोलते हैं हिट है, नहीं होता, लेकिन कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते. अब जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर आप दो गानों के व्यूज़ को कंपेयर करने लग जाएंगे तो शायद हाँ एक हिट है, एक फ्लॉप है. बट मेरे लिए वो जो गाने हैं, जैसे LTD वाला गाना है, जब अगर मैं आपको बताऊं उसका किस्सा, कि जब LTD गाना बनाया था तब ऐसा माहौल बन गया था मेरे आसपास कि भाई ये गाना कोई उठा ही नहीं रहा, उठाएगा नहीं. फिर हमने 5.5 रिकॉर्ड्स हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, उनके साथ मैंने वो टेप करी थी, कार्तिक अक्षर, और उन्होंने बिलीव किया उस पर. हमने वो गाने वाने किए उस टाइम पे. पर जब वो बनाया था तो ऐसा हो गया कि लोहे द टट्टे यार, ये क्या गाना है. ऐसा भी होता है ना. तो अपनी तरफ से हमेशा ऐसा ही रखा है कि भाई ये हिट है, मेरे को भरोसा है इस पे, इस गाने पे. वो जब तक है तब तक मैं करता रहूँगा म्यूजिक, जब तक मेरे को भरोसा है, और जब तक मेरे को लोगों की आंखों में दिखता है स्टेज पे कि हाँ
भाई गाएगा और मज़ा आएगा, सुनते हैं, वो तब तक ही है। Have you gotten everything out from your heart in terms of music, or do you think that even as an artist at this stage, music is something that when you make it, you're trying to express an unexpressed part of yourself? यार, Yeah. for example, if मैं अगर ऐसे बुकाउस्की जैसी चीज़ें अभी लिखना शुरू कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे मेजर जो डर है जीवन में कि मैं ये लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, खत्म हो जाएंगे. लाइक वट एवर इज एन अगली पार्ट ऑफ मी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, मैंने बाहर प्रकट कर दिया है. सो आई एम फियरलेस, फ्री इन अ वे. डू यू फील लाइक यू डन दैट, और देयर इज मोर टू गो? There's definitely more to go. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं छूना चाहता हूँ म्यूज़िक से, बट जैसे रिमाइंडर गाना हमने किया, कुछ पुराने फैंस के मैसेज भी आए कि भाई हमारा तो दिल ही टूट गया है सुन के, आप ऐसा बोल रहे हो, और ये बहुत ही एक वायलेंस है एक तरीके का औरतों के प्रति, और इसमें तो उस चीज़ को मतलब बढ़ावा देने वाली चीज़ है ये. आप इतने समझदार हो कि आपको पता है ये म्यूज़िक है, ये एंटरटेनमेंट है, सुनने वालों को नहीं पता होता कई बार, एंड दे टेक दिस एज हल्ला शेरी की, चक दो, कर दो, मैं तो दारू पी के किसी को कुछ भी, है ना, ऐसा भी है. वो चीज़ भी झेलनी पड़ती है. हम क्या उससे हम अपने स्टैंड पे हिल गए, क्योंकि हमारा स्टैंड तो क्लियर है पहले दिन से. मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ. हर तरीके का मैं गाना लिखता हूँ, अपनी भी कहानियाँ लिखता हूँ, लोगों की भी लिखता हूँ. एज एन आर्टिस्ट मैं चाहता हूँ हर चीज़ पे लिखूँ. सही या गलत वो लोगों पे निर्भर है. अब मतलब वो चीज़ सही है या गलत है सोसाइटी में, वो सोसाइटी तय करेगी. मैं हर तरीके की चीज़ लिखना चाहता हूँ. क्या उससे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गया? नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आज मैं यहाँ बैठा तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैठा हूँ. आप मुझे कोई क्वेश्चन बोलोगे, मैं आंसर करूँगा, मैं कर रहा हूँ. मैं कोई चीज़ से भाग तो नहीं रहा, बैठा हूँ. कुछ भी पूछ लो आप, मैं आंसर सही दे सकता हूँ, गलत दे सकता हूँ, मैं दूंगा. मैं कभी इस चीज़ से भागता नहीं. तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बताता हूँ लोगों को कि हाँ भाई मैं ये एल्बम क्यों बनाई, क्या मेरा मंतव्य था, ऐसा था वैसा था. तो आपने जो चीज़ पूछी ना, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी बहुत चीज़ें मेरे को बोलनी है, बट अनफिल्टर्ड भी फिल्टर्ड होता है, वो भी फिल्टर्ड होता है. आई कैन गो वे मोर ब्रूटल इन रिमाइंडर एंड गॉड इज डेड, ट्रस्ट मी. मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने कट आउट करी हुई हैं उसमें से. एक दवाई देने का भी एक डोज होता है, मतलब उसको ज़्यादा नहीं दे सकते. हाँ, वो एक तरीका है. तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ मैं अपने तरीके से करूँगा. एंड एज अ मैन मैं भी इवॉल्व हुआ हूँ 2-3 सालों में, जब से म्यूज़िक मेरा अप्रिशिएट करने लगे हैं लोग, और वो एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस तक भी पहुँचा है. जैसे ये जो चीज़ है बोलना मुझे, कि भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं बिल्कुल, कि आपने ये बनाया, आपको हक है, आपका हक है लिखत लिखने का अलग अलग तरीके की, पर लोग कैसे लेते हैं, ये सेट ऑफ लोग ऐसे लेते हैं, ये सेट ऑफ ऐसे लेते हैं. ये एक सुलझा सियाना बंदा ही मेरे को बता रहा है, ऐसा नहीं कोई राह चलता बंदा नहीं मुझे मैसेज कर रहा. उसको पता है, दुनिया उसने भी देखी है, और वो आउट ऑफ कंसर्न ही मुझे बोल रहा है कि बाकी भाई ऐसा भी होता है यार, आपके गाने इतने सीरियसली भी लोग लेते हैं, ठीक है ना. तो इन 2-3 सालों में ऐसी ऑडियंस भी बनी है मुझे, जो सिर्फ नाचती नहीं है, मुझसे बात भी करती है, और मैं लोगों की बात सुनता हूँ. आई एम नॉट दैट इग्नोरेंट अभी, ठीक है. तो मैं भी इवॉल्व हुआ हूँ, और मैं आई एम फाइंडिंग मोर वेज ऑफ राइटिंग, जिससे कि मैं लोगों को वो महसूस भी करा सकूँ, और उनको मेरा असली इंटेंट भी समझ में आए. तो मैं फाइंड कर रहा हूँ. शायद कभी उसका गलत मतलब भी निकल जाता है, ठीक है, फिर ओके. हमारा स्टैंड तो क्लियर है, हम क्या कर रहे हैं. हम अलग अलग चीज़ों पे पहले भी लिखते थे, अब भी लिखते हैं. अब सेम एल्बम के पहले गाने में, एनिमल में, हम लिख रहे हैं कि भैन तेरी टक्करी सी वर में दे फ्लैट थे भी, वो रैपरों के पट्टों पे बैठी हुई है. आखिरी गानों में लिख रहे हैं कि प्यार के बारे में इतना ज़्यादा ये कि दीवाना हो गया हूँ तुझे देख के. तो हम तो अपनी तरफ से जो सुपरमार्केट फॉर एवरीवन. हाँ, हम तो जो अपनी तरफ से करना चाहते हैं सब कर रहे हैं. फ्रीडम यही तो है यार. इतने साल इसी चीज़ पे तो मैंने काम किया कि मैं खुल के काम कर सकूँ जो मैं करना चाहता हूँ. पर हाँ, कई बार मतलब जो है वो गलत भी निकाल लेते लोग, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे अभी मुझे बात करनी है, पर मैं वक्त लेके तरीके से करूँगा. अभी 10% भी नहीं हुआ. I think the mantra is simple. An artist should not chase likability, but expression above all. Yeah. Because if I'm trying to be liked by everyone, or even by my fans,
then I will be a prison to their perception of Yeah. me कि ये क्या चाहते हैं मुझसे सुनना. Yeah. और अगर मेरे अंदर इतने तूफान मच रहे हैं और मेरे अंदर ये बात कहने की है, if I don't isolate people every now and then I haven't done my job. Yeah. Then I am betraying my own instinct. Yeah. वो सेम इंस्टिंक्ट जो आपको फर्स्ट डे बोलता है कि मैंने माइक पकड़ा है या 4 लोगों के सामने मैं रैप करूंगा या लिखूंगा या गाऊंगा कुछ और करूंगा. And I think that the great artists of our time, they all go back to that original instinct. When you feel like कि Madonna, U2, Coldplay, जो crowd surfer stadium वाले लोग हैं, just when you think that, and you can hate them and say they're mainstream, that इन्होंने hit कर दिया, how will they top it? Then they make something completely new for new fans. वो 13 साल के बच्चों के लिए गाने बनाते हैं, बोलते हैं कि बहन से तू like you're not giving the old fan what they want, but you're making a new fan. फिर आप पिस ऑफ होते हो. नेक्स्ट एल्बम मेक देम पे इट्स लाइक अबाउट द ओल्ड रूट्स, सेम रॉक एंड रोल. आप बोलोगे अरे वाह. एंड आपको नहीं पता कि वो आपके लिए बना रहा है, उसके लिए बना रहा है. हो सकता है ही इज जस्ट मेकिंग इट फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज मेकिंग अ बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर. सो इफ योर इंस्टिंक्ट इज दैट ट्यून्ड, you are able to fill the audience that you want from your life, whatever the consequences. बोलते हैं कुछ लोगों के फैंस बड़े टॉक्सिक होते हैं कि आदमी भैंचो निकाल रहा है ऐसी बात, क्या करे. पर मेरे को लगता है कि it's one of the most flattering things in the world to have a following. And I don't think people realize that. People don't realize the fact that it's not the same as being a creator with numbers on your name कि मेरे पे इतने followers हैं. It's like I said something with music and it changes so much that you will pay a ticket and come for me. And you will jive for me और तुम्हारा पसीना आएगा और तुम दूर से भागते भागते आए और तुम चिल्लाओगे मेरा नाम. आई थिंक अगर आज कॉन्करर जिंदा होते, जिस तरह की उनकी अपील होती है और पागलपन होता है, कल्ट लाइक स्टेटस होता है, जब शाहरुख खान ऐसे करता है और उसके सामने वो लोग बैंड स्टैंड में खड़े हो जाते हैं कि एक झलक मिल जाए, वो जो फ्लैटरी होती है आर्टिस्ट की हर लेवल पे, आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स एंड आई थिंक नो आर्टिस्ट शुड टेक इट लाइटली. एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो आपने बोली है कि हमारे तो चलो हाथ जुड़ते थकते नहीं हैं, हम बहुत शुक्रगुजार है हर इंसान के जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं. और जहाँ तक रही लाइकनेस वाली बात, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे लाइक करते हैं, जब मेरी ऑडियंस मुझे प्यार करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी भाई बहन मेरे थे नहीं, ठीक है, घर पे बड़े, सबको पता ही है सिचुएशन अब तो क्या था क्या नहीं था, प्यार से बहुत दूर रहे. जब इस रैप ने, म्यूज़िक ने मुझे इतना प्यार दिया लोगों का मुझे, तो मैं बहुत उस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ. पर जो मेरा काम है ना और जो मेरी ऑडियंस बनी है, मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत समझदार लोग हैं. और मैं थोड़ा बहुत झूठ बोल सकता हूँ, मैं पूरा उनके साथ झूठा नहीं रह सकता. जब मैं झूठा हूँगा उनको पता लग जाएगा. अगर जो मैं बातें बोल रहा हूँ अगर मैं उनके साथ एक्ट करूँगा तो उनको पता लग जाएगा. वैसे भी मैं कर नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ. हो सकता है मैं गलत हूँ कुछ चीज़ों पे, पर जो मैं हूँ वो मैं रहने की कोशिश करूँगा. ये मेरा है अभी लाइफ में कि जैसा मैं हूँ वैसा मैं रह सकूँ मेरी ऑडियंस के साथ और थ्रू माई म्यूज़िक. सिंपल एज दैट. उसी में मैं भी कंफर्टेबल हूँ और अभी लोग भी मेरे साथ मुझे प्यार ही करते हैं. इट्स ओके. कभी गुस्सा करेंगे तो वो भी देख लेंगे फिर क्यों कर रहे हैं गुस्सा, पर अभी तो ठीक है. कभी कभी हो जाता है, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, बट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भागते नहीं है, जवाबदेही से कभी भागते नहीं है. जिन लोगों ने इतना प्यार दिया बनाया है, जवाब भी देंगे, क्या दिक्कत है. कुछ गलती होगी तो बोलेंगे भी, उस पर बात भी करेंगे. तो इतना ही है. आई थिंक फॉर मी दिस इज़ वेरी सिंपल. हम लोग म्यूज़िक बनाते हैं, मी डॉग्स हमारी सारी टीम, हम लोग म्यूज़िक क्रिएट करते हैं क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट आर्ट की वो कह लेते हैं श्रेणी जहाँ पे हमने अपने आप को फाइंड किया. रैप म्यूज़िक से मैंने अपने आप को फाइंड किया कि जो रैपर्स मैं सुनता था कि यार ये मेरी जैसी बात करते हैं और रैप करना ईजी है, मुझे लगता था. और है भी. आप 2-3 साल लगाओ, आप भी रैप करना सीख जाओ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. आप अच्छे राइटर होने चाहिए. रैप तो कोई भी कर लेगा, रिदम पे आ जाएगा, वॉइस भी बना लेगा. आप लिखते क्या हो, है ना. रैपरों का यही है कि वो राइटर होना चाहिए बंदा. सिंगर तो आपको पता ही है, सिंगर तो किसी से लिखवा के भी चल जाता है, उसको तो सुर लगाना है. रैपर की थोड़ी सी अलग चीज़ होती है. तो मैंने अपने आप को फाइंड किया रैप म्यूज़िक से. तो ये पहले ही एक श्रेणी बनी हमारे म्यूज़िक की जहाँ से हमने अपने आप को एक्सप्रेस किया. जैसे कि मैंने बताया, हम इस पर रुकने वाले नहीं, हम और चीज़ें भी करेंगे और चीज़ों से भी एंटरटेन लोगों को करेंगे. पर हमें सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो है म्यूज़िक से.
और म्यूज़िक में हमारी यही कोशिश है कि जो हम हैं रियल में वैसा रहें। कभी कभी मेरे को, लेकिन मेरे मन में होता है ऐसा भी, जब मैं लिखता हूँ कई चीज़ें, और मैं जैसे डॉग्स को सुनाता भी हूँ रिलीज से पहले कई बार, कि यार ये ऑडियंस कैसे लेगी इस चीज़ को। जैसे संजू एंड सल्लू रिटर्न्स थी, काफ़ी ब्रूटल थी, और इसको ये इससे भी ज़्यादा ब्रूटल थी असल में ये एल्बम, बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। तो मेरे को था कि लोग इसको कैसे लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा फिल्टर किया, जो सुनने लायक रही, कानों से खून ना निकले बंदे के जब वो सुने, तो इतनी गालियाँ भी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा उसको ठीक करके हमने रिलीज़ किया। और जो मुझे प्यार मिला है उस चीज़ से, वो मेरा ये बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हुआ है कि बोलो सच, कोई दिक्कत नहीं है, दे लाइक इट, It sells. या लेट्स बी ट्रू अबाउट इट मैन, लेट्स नॉट बुलशिट विद पीपल। करते हैं, ठीक है, 15 की जगह 10 गाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा करो भी कान से खून ना निकले, बट लेट्स बी ट्रू मैन, लेट्स डू इट, फक इट। So, Docs, Bagi Munda, हाँ जी। let me ask you this then, before we end. What's next? अभी देखो, लास्ट टाइम मैं जब आपके पास आया था, मैंने आपको बोला था कि अब मेरे को इंडिया की सबसे बड़ी वीडियोस बनानी है, You made it. बड़े विजुअल्स बनाने हैं, एंड आई थिंक मैंने वो 10% कर दिया। 5 मिलियन पे हम पहुंच गए। अभी अपने को थोड़ा बड़ा करना है, विजुअल वाइज करना ही है ऑब्वियसली, एक मुकाम पे पहुंचे हैं तो और बड़े की कोशिश करेंगे। व्यूज से मेरी मुराद है भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ऑर्गेनिक है व्यूज़, पैसे तो लगाए नहीं मैंने, तो इसका मतलब ये कि लोगों तक पहुंचा है। तो क्या है मेरी मुराद कि और लोगों तक पहुंचे, विजुअली मैं और लोगों तक अप्रोच करूं, है ना, अपनी म्यूज़िक से। बट उसके अलावा जो मेरा अब गोल है वो ये है कि एक अर्बन पंजाबी जो आइडेंटिटी है, जो बच्चे मेरी तरह शहरों में पढ़े पर बहुत गरीब परिवार से हैं, अब ना वो गांव के रहे ना वो शहर के रहे, वो एक ऐसे उसमें है कि बड़े सपने देखना चाहते हैं, और एक अर्बन पंजाबी जो आइडेंटिटी है, जो मेरा म्यूज़िक है, जो कि एक ऐसा बंदा भी सुन पाता है जो पंजाबी जानता नहीं है, वो भी पंजाबी समझ आता है। ऐसे ऐसे उसको रेफरेंसेस, ऐसी स्टोरीज, ऐसे ऐसे हुक्स, ऐसे विजुअल्स होते हैं उसके, वो अर्बन पंजाबी आइडेंटिटी को और आगे लेके जाना, दैट वी नो अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, हमने चाहे अंग्रेजी फेसबुक से सीखी है, बट हमें सब पता है, हम करंट चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे हम ड्रॉप आउट हैं, क्योंकि ये मैं नहीं हुई, बहुत बहुत बड़ी आबादी है पंजाब की ऐसी, उस तबके से है, लेकिन जो कि यू नो दे वांट टू मेक एवरीथिंग अबाउट देमसेल्फ कूल। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से यही रहा है, सिर्फ बनियान थी एक जोकी की। जब मैंने अंडरपास के एल्बम का वीडियो शूट किया था, नो फियर की वीडियो यूट्यूब पे कोई बंदा देखेगा तो दिख जाएगी, सबसे कॉस्टली चीज़ ये थी मेरे पास कि जोकी की बनियान है, 350 की है सबसे। आज भी पहन रखी है? हाँ, जोकी की है। जोकी की crazy। तो वो था कि भाई जोकी की बनियान जेडी अपा ली सी 22 सेक्टर, तो ये साथ में था जब मैंने ली थी, क्योंकि दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी एट दैट टाइम कि मेरा शूट है, इससे पहले मैं जोकी की बनियान ले रहा हूँ 350 रुपये की। और क्योंकि MC स्टैन बूमिंग एट दैट टाइम, ही वाज बूमिंग, एंड उसने बनियान पहनी हुई थी, और बाहर भी रैपर पहनती हैं, तो पैसे इकट्ठे करके दिहाड़ी लगाते थे 500 रुपये की, 350 की बनियान लेके आया था जोकी की। और मुझे लग रहा था कि इसको कूल बनाते, इसको फ्लेक्स करते हैं, तो वो मैं वीडियो में बना रहा था। तो स्टार्टिंग से मेरा गोल रहा है मेरे आसपास जो चीज़ें हों, चाहे जैसे भी हो, ब्रांडेड अनब्रांडेड, छोटी मोटी, हर चीज़ को कूल बनाना इस तरीके से, ताकि जो सामने वो जो आइडेंटिटी है वो सिक्योर फील करे, वो भी अपने आप को कूल समझे, एंड दे कैन गेट मोटिवेटेड इन लाइफ, समझे। तो वो है, अब मेरा गोल ये है। मैं इसलिए, अभी हम कोई भी ब्रांड पहन सकते हैं, क्या दिक्कत है, शर्ट पैंट बूट ये वुडलैंड के इसलिए पहन के घूमते हैं ताकि ये भी कोई खरीद सकता है, सामने खरीद सकता है, एक्चुअली खरीद सकता है, इसमें क्या है, इट्स नॉट आउट ऑफ रीच। ये 200-300 की है, ये वैसे टिम्बरलैंड की है मेरी पैंट, बट आप ऐसे खरीद सकते हो सस्ती। और कहने का मतलब है कि 5-6 हज़ार में ये आप आउटफिट कर लोगे तैयार, अपना बन के घूमो बागी मुंडा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुफ्त लगता है, इधर से कटवा लो, ये रख लो, हो गया, ये बनवा लो, एक बन गए आप कूल। क्योंकि आपको दिखाने के लिए है एक बंदा, अगर आप मेरे जैसे दिखते हो तो आई विल मेक इट, डोंट वरी, आई विल बी अ स्टार, बिग स्टार, डोंट वरी। मैं हर जो मेरे तबके का बंदा है मुझे देख सकता है, और एक बड़ा सपना जो है वो
देख के पूरा कर सकता लाइफ में. दैट इज़ माई गोल. ये जो है म्यूज़िक, इसके थ्रू हम वो करेंगे अभी. टेप्स और एल्बम से अगर आपका है कि मैं बताऊं क्या आने वाला है, तो वो नहीं मैं बता पाऊंगा. That's fine. वो नहीं बता पाऊंगा. पर मेरा गोल सच में यही है अभी इस एल्बम से, कि वो जो पंजाबी अर्बन पंजाबी है ना बंदे, जो कि उस तबके से हैं, जो मेरी जैसी लाइफ से निकले, सबके लिए म्यूज़िक तो देखो. अब दीवाना आप लगाओगे म्यूज़िक, हर बंदा ही नाच लेगा उस पर, इतना कुछ नहीं. एंजॉय तो हर कोई कर लेगा, बट यार किसी की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालना एक अलग चीज़ होती है. कि आपसे कोई प्रेरणा ले सके आगे बढ़ने की, वो. क्योंकि मेरे साथ हुआ है यार ऐसा. मैं बहुत आर्टिस्टों को देख के मैंने अपने आप को पुश किया लाइफ में, मेहनत मजदूरी करी है. तो मैं उस चीज़ की कीमत समझता हूँ, और मैं जानता हूँ वो छोटा सा चेंज भी कितना बड़ा होता है किसी की ज़िंदगी में. सो यार दैट्स व्हाट आई वांट टू डू विद माय म्यूजिक इन फ्यूचर. डॉग्स. मेरे लिए तो यार आई थिंक अब इतने टाइम से हम डूइंग इट, और इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं म्यूज़िक को लेकर. और जब अंडरपास बन रही थी तो वीडियोस वगैरह हम बनाते थे, विजुअल्स और एडिटिंग और ये सब. सो आई थिंक आई वांट टू गो इनटू दैट अगेन. विजुअल्स जो आई थिंक जो अभी मैंने एल्बम निकाली थी वन फ्रॉम द क्राउड, सो उसके जो सारे विजुअल्स है विच गॉट आउट फ्रॉम 5.5, तो उन्होंने ही किए थे जो सारे विजुअल थे, 2 आर्ट वर्क्स वो ये सब. तो आई थिंक नेक्स्ट आई वांट टू हैव अ लिटिल बिट कंट्रोल ओवर व्हाट आई वांट टू शो. जो मेरा इन्फ्लुएंस रहा है स्टार्टिंग से, आई थिंक माय म्यूज़िक एक्चुअली स्टार्टेड माइकल जैक्सन, तो वहाँ से मेरी जो ये जर्नी म्यूज़िक वाली स्टार्ट हुई है. सो वो सब इन्फ्लुएंस, और जो अभी आई थिंक जो मेरे दिमाग में चल रही है म्यूज़िक को लेकर, मतलब more than music, it should be not just hip hop, it should be like a grand, it should be expensive, it should And we always say it's way more than just music. it should sound कि यार ये तो I think I should listen to this, मैं इसको मिस नहीं कर सकता. So I think that अभी मैंने अपना तो बताया नहीं, मैं इनका लेकिन बता दूंगा. ये कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे काम, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है. और फिर मैं दूसरे के प्रोजेक्ट का तो इतना ही बता सकता हूँ. अभी यही नहीं बता रहे तो मैं क्या बताऊँ. तो एक है भाई, एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, और देखते हैं अभी कब आता है. फिर वो बाहर लगे हुए हैं अपनी जॉब पे. I will say that today has been the lightest and heaviest conversation I've done with both of you. And मुझे बहुत अच्छा लगा. सेम भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. बड़े टाइम बाद मैंने पॉडकास्ट किया, लास्ट आपके साथ ही किया था. उसके बाद तो हमने ऐसे बातचीत करी नहीं किसी के साथ बैठ के. बड़ा अच्छा लगा आज. Cheers. थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा. बड़े टाइम लेके कर रहा हूँ मैं ऐसे. तो अभी देखते हैं फिर क्या पता मन करे मेरा करने का. मैं आप दोनों का म्यूजिक सुनता हूँ जी, और सुनता रहता हूँ अगेन एंड अगेन एंड अगेन. डिपेंड करता है जीवन का कौन सा फेज है. हो सकता है जैसे जो स्पेस पॉडकास्टर्स ऑक्यूपाई करते हैं कुछ लोगों के लिए ऑडियो पे पैसिव लिसनिंग की, म्यूजिक खासकर रैप म्यूजिक को, खासकर ऐसा इंटेंस रैप म्यूजिक को आप पैसिवली नहीं सुन सकते. इट इज एन एक्सपीरियंस. इट डिमांड्स बियॉन्ड द हैंड्स इफ यू आर ड्राइविंग ऑलमोस्ट ऑल द अदर सेंसेस. So that being that companion for so many people across the nation and some abroad, again and again, and then उसके बाद उस इंसान को, उस जवान लड़के को लड़की को ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, I feel understood, and you're like damn, ये मैंने डिस्कवर करा है. and तुम्हारा मन करता है कि इसको मैं लोगों को दिखाऊं, दोस्तों को, ताकि हम सारे ये फील करें. I've had that with your music. एंड कभी कभी मैं बोलता हूँ रात को जब हम गाड़ी में घूम रहे होते हैं फरीदाबाद में कि चल बागी मुंडा प्ले करते हैं. अच्छा हाँ तूने सुनाया था भाई. फिर हाँ भाई हाँ ये देखिए अभी क्या बोलेगा. Just like these small moments that you come to appreciate. It's like अभी रुक जा, अब वो फेज आएगा, अब गॉड बोलेंगे. I mean, I'm sure you hear this a lot, but no. As a listener of the music, you're like, it's just. It really means a lot, yaar, coming from you, bhai. As a consumer of your music, I think it's fantastic that I know you. Yeah.
Yeah, this was those cast with Baggy Munda and Dogs. You can follow them also on Baggy Munda and Dogs. And I would like to say one thing about you, Please. कि आपने लास्ट टाइम भी हमें जैसे होस्ट किया और आज भी किया आपने ऑफ द कैमरा, और वैसे हम लोग बैठे, मैं जस्ट अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि वी रियली अप्रिशिएट दैट एंड वी रियली लव यू भाई. बड़ा Love you too, bro. हाँ, Cheers. बड़ा भाई मज़ा आया. पॉडकास्ट करना और बातचीत करना ये तो आप करते ही हो इतने सारे लोगों के साथ. हम भी मतलब अभी आपके साथ ही करा लास्ट टाइम भी और अब कर रहे हैं, तो इट वाज मतलब वेरी फन इवनिंग विद यू. बट आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ फरीदाबाद में आके, बहुत अच्छा Yeah, I लगा. also told you in the phone one thing that my listeners won't know is that I no longer want to do podcasts that are like कि भाई चलो कर लो इस पे अच्छा चलता है पॉडकास्ट. मेरा मन था कि मैं ऐसे लोगों से बात करूं जिनसे मैं वाइब करता हूँ. इफ दैट Yeah. मीन्स कि हमारी ग्रोथ स्लो होए या लोगों को कोई दिक्कत हो, आई एम ओके विद दैट. बिकॉज आप जब बहुत सारे करते हो ना, आप इफ यू आर टू कमर्शियल, आई एम लाइक अ कमर्शियल आर्टिस्ट कमिंग बैक टू माय रूट्स. इट्स लाइक इफ बादशाह गोज एंड सेज कि मैं कहाँ से आया था. So that's why I wanted to have you on, and I'm so glad you met Anmol also. He's a Yeah. dear friend of mine. हाँ, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके भी. उन भाई के साथ भी हमारी पिक्चर हो गई है. पोर्टफोलियो में एक और पिक्चर ऐड हो गई हमारी. तो of course लोग सुन सकते हैं Sanju Salu Returns 2, and they can play Divana on YouTube. Watch the video. I think it's one of the best videos in the scene. And yeah, thank you for your time, guys. Thank you so Thank much. you, I bhai, really thank you. appreciate that.